Welcome to the YouTube channel of Autism Without Borders, where you will be getting awareness regarding autism, other developmental delays, neurological disorders, their red flags, causes and interventions. ऑटिज्म और दीगर असाबी उर्स के बारे में आगाही, उनकी अलामात, वजूहात और उनका हल। Now, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all the participants are doing well. I'm Dr. Gulsanam, CEO of Franklin Inclusive System, Peshawar KPK, also chairperson of Smile Welfare Organization and founder of Autism Society KPK, autism specialist, clinical and child psychologist, speech language pathologist, RPT, and neuro-linguistic pathologist as well, certified ABA and hypnotherapist. Along with Dr. Azra Rafiq, who is the program director, and Ms. Nadia Riaz, who is a coordinator of the Autism Surveillance Management Project. So I'm excitingly thankful to the respectable speaker and all the participants out there. Alhamdulillah, after the successful running of the Franklin Inclusive System Peshawar KPK that provide excellent therapeutic and academic services of children with autism under one roof. While running this inclusive school system for 2 years now, I feel that children with autism are treated very differently, especially in our society, like in KPK, and there is mostly no awareness about autism, but it is considered as a stigma. So I committed myself to run a project which works for the education, awareness of the society, and betterment of children with autism in every aspects of their lives. And the challenges which usually children and their parents face in the community on everyday basis. So for a long time, definitely we needed a platform from where we can educate and raise our voices for the equal rights of children with autism collectively. So we needed support, we needed our voice to be here. Alhamdulillah, today I'm extremely thankful to the Almighty of empowering us to launch the society by the name of Autism Society KPK Pakistan. And I would like to briefly share some of the missions of this society and our plans. So we will be working for the equal rights of children with autism and in this society, and the workplace inclusions of children with autism and society, enabling children with autism to be the leader of the community as well, highlighting injustice and problem faced by children with autism and their parents on social media and mainstream media as well, encouraging parents to involve in education and bringing awareness to the society. Also bring in the notice of the government toward the autism and the foundation of the specialized school exam syllabus for the children with autism and ADHD as well. Bringing experts and caregiver under the one roof and one agenda for the betterment of children with autism and also ADHD. Financially support for unaffordable parents as well for the children with autism and many more our missions. So our today webinar is the first step toward our commitment. So now I would like to introduce our today guest speaker, Dr. Anika Suhail. She is the head of pediatric department at WABDA Teaching Hospital Complex. She is a certified fellow and member of pediatrics. She is a graduate of King Edward Medical College in Savin as an associate professor at Central Park Medical College. She is a global ABA consultant and trained herself in multiple intervention of autism from abroad. She is a certified practitioner in floor time methodology, and she did her RDI professional online training in India. She is trained in natural play therapy and graduate in facilitate communication from the USA. Recently, she has done her multi-modal communication for education course for autism online from the USA. She is the founder of Help Autism Pakistan, and organization that is helping empower and educate the autism community around the global. She has started a pilot project of a school skills rehearsal program for students while autism under the umbrella of Help Autism Pakistan. She is a board certified international lifestyle medicines physician from the USA. She is also the member of Pakistan's Dr. Gul, your voice is not coming.
She is also the member of Pakistan Society of Lifestyle Medicine. So I'm deeply grateful to her for giving us her precious time and her busy schedule, and also to Miss Nadia Azra, who sincerely work for this and to make it successful. So before I invite our guest, I would like to thank you, Miss Nadia, and I would like to invite you to speak something, please, Miss Nadia Riaz. Thank you so much, Dr. Gul, and thanks for inviting us. And we are really grateful to Dr. Anika for giving her precious time to us. I would like to congratulate you, especially for taking this initiative and starting off with Autism Society KPK, which was the dire need of society. क्योंकि ऑटिज्म की एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस को फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेशली केपीके हो, बलूचिस्तान हो, इनमें काम काफ़ी कम हो रहा है इस फील्ड में. तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड आवर बेस्ट विशेस आर विद यू कि आप इसमें ज़्यादा तरक्की करें और पूरे केपीके में ये चीज़ फैल सके और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो और गाइडेंस हो. और इसमें पहला स्टेप ही ये है, जो टॉपिक हमने चूज किया है, कि इन बच्चों के लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान कैसे बनाया जाए, इनके लिए पर्सनलाइज्ड प्लान कैसे बनाया जाए. और डॉक्टर अनीका सुहेल को इस चीज पे बहुत कमांड हासिल है. शी हैज बीन ट्रेनिंग टीचर्स, थेरेपिस्ट, स्टूडेंट्स इन दिस फील्ड. तो इंशाल्लाह वी विल बी लिसनिंग टू हर मोर. आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर प्रोजेक्ट के हमारा पर्पस भी यही था ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स को स्टार्ट करने का. Make a slideshow, Nadia. Now it's slideshow? Yes. 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 Okay, thank you. तो डॉक्टर गुल ने इंट्रोडक्शन दे दिया है. डॉक्टर अज़ा रफीक, शी इज कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट ऑटिज्म सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट, एंड आई एम स्पेशल एजुकेटर, licensed RBT parent counselor, and I am the coordinator. So we started off this project 3 years back, 3 years back almost, and the objective was early diagnosis of autism spectrum disorder and interventions to achieve best potential. कि बच्चों का हम best potential achieve कर सकें. क्योंकि जितनी जल्दी इंटरवेंशन होती है उतनी ही जल्दी वो उनकी मैनेजमेंट के उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं. Then for this implementation we have autism awareness programs हम करते रहे हैं. Till date we have done almost 50 autism awareness programs and सारे provinces के साथ, चारों provinces के chapters हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं. And the awareness programs are for healthcare providers and children caregivers. Training दे रहे हैं ASD screening में, the MChat and children autism screening test both are available on our autism website. तो उस पे से आप स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, जल्द से जल्द अर्ली स्क्रीनिंग कर सकते हैं. इसके लिए हमने मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम भी किए हैं, लोगों को ट्रेन किया है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट. रेफरल मैकेनिज्म के लिए हमारे पास डायग्नोसिस और इंटरवेंशन में हम हेल्प आउट कर रहे हैं, एंड फॉर दैट वी हैव ऑटिज्म रिसोर्स डायरेक्टरी, जिसमें टिल डेट देयर आर 350 एंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह, or rehabilitation and follow-up. So these are all our collaborations with India, Canada, UK, and Little Pure Souls, which is also a great directory, and that is also available on our website. और बाकी फाउंडेशन ऑटिज्म विंग के साथ, and now we are grateful to have the collaboration with Franklin. और इनके साथ हम डॉक्टर गुल is also our volunteer. हमारा वॉलंटियर प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, जिसमें वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ who have joined us. They are parents, therapists, educators, social workers, and we are glad that people like Dr. Gul Sanam are also part of this volunteer program and spreading our cause and helping us in promoting autism awareness and acceptance. So that's all from my side. Now I would like to invite Dr. Anika Suhail to start her presentation. Over to you, Dr. Anika. जी अस्सलाम वालेकुम. मुझे I actually cannot share my screen, तो मुझे allow करवा दें.
Yeah. Now you can. Assalamu alaikum. Walaikum Walaikum assalam. salam. Nadia, did you make Dr. Anika co-host? Yes, I have. आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? नहीं डॉक्टर अनीका, नॉट येट। आप शेयर स्क्रीन पे करके आपके पास आपकी विंडोज शो होंगी, उस पर क्लिक करके आप शेयर दबाएंगी तो फिर होगा। अच्छा, मैं दोबारा से करती हूँ। इसे मैंने आप अपनी अपना पावर पॉइंट अगर डेस्कटॉप पे ही रख लें, डेस्कटॉप पे कर लें पहले उसको। डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। हाँ तो फिर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मुझे आप तो नजर आ रही है। ठहरे, मैं दोबारा से शेयर करने लगी हूँ डॉक्टर अजरा। अब नादिया को करने इस वक्त मैंने नादिया को होस्ट बना दिया एक्चुअली, क्योंकि मेरा क्लिनिक आज होता है तो मुझे आई हैव टू लीव। जी मेरे पास आ गई है डॉक्टर अनीका की, अगर उनसे शेयर नहीं हो रही है तो फिर मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ, आप कह रही थी जी, ना आप डाउनलोड नहीं करें। हो रही आपसे। नहीं, मैं नहीं अब हो गया है। एक सेकंड में सेव कर लूं। हो गया नादिया? जी एक सेकंड, आई एम जस्ट सेविंग इट ऑन डेस्कटॉप। ओके। अभी वो हुई है रिसीव। तो अनीका, आपको क्या प्रॉब्लम उसमें शो कर रहा है? बस मैं आपको ये मैं शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि 2 दफा उन्होंने पता नहीं क्यों ब्लॉक कर दिया है। नो इशू, अब मैं कर रही हूँ शेयर। अब आपको लगता है कि हाँ, ये डॉक्टर अनीका की अब जी आ जी गई है। चले हाँ आ बस गई है। हाँ, चले ये डबल क्लिक कर दे इसको ताकि खुल जाए ये। स्क्रीन फुल स्क्रीन कर दें, ये आप कह रही हैं? नहीं, अभी ये presentation is not open. Your screen, you shared your screen, and that's showing the development of individual education. Yeah. Just that icon. अब ये आगे आ रही है स्लाइड्स? नहीं ये स्लाइड्स नहीं आ No, रही। शो नहीं हो रहा। अगर इसको डबल आप क्लिक। अलाउ करें तो मैं कर देती हूँ शेयर, आप अपनी तरफ से इसको स्टॉप शेयर कर दें। जी, आपने स्टॉप कर दिया है। जी स्टॉप कर दिया मैंने। ठीक है, मैं शेयर कर दूँ। एक्चुअली वो मुझे नेक्स्ट कहना पड़ेगा तो वो तो थोड़ा इशू होगा। मेरे लिए कोई बड़ी मसला प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इसलिए कोशिश कर रही थी कि चले कोविड अब ने बहुत कुछ सिखा दिया है वैसे हम लोगों को भी। चलेगी। सर नौशाद ने हमको ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। नादिया, कैन यू सी? अदरवाइज वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी डॉक्टर अनीका की आपकी वजह अभी से भी खुल नहीं रही है, वो आइकॉन नहीं आ रहा है, आइकन आ रहा है। आपका भी नादिया, आपसे भी नहीं खुल रही? जी मेरे से तो हो गई है, मैंने कर दी थी। वो डॉक्टर अनीका असल में चाह रही है कि वो नहीं खुद नहीं 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 नहीं, आप खुद ही कर ले, फिर लेट ना करें, आप खुद ही कर ले। एक्चुअली ये जो है ना डॉक्टर अनीका, आपने स्क्रीन पे रखा हुआ है, तो मैंने कहा था कि उसको ओपन करके हाँ। डेस्कटॉप पे रख दे जी, तो जी। डायरेक्टली शेयर हो जाती है। जी मैं चले अब मैं कर रही हूँ, अब इसी को हम करते हैं, सही है? जी जैसे आपको कंफर्टेबल है। जी जी, क्योंकि वो फिर क्योंकि वो आज की Yes. प्रेजेंटेशन ऐसी है जिसमें बहुत आपका ऑन हो गया। जी अब आप लोगों को नजर आ रही है? यस, बिल्कुल क्लियर हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ठीक चलें है। डॉक्टर अनीका, आई थिंक यू शुड स्टार्ट। आप मुझे नेक्स्ट चलिए, कहते रहिएगा तो कोई इशू नहीं है, आई विल मैनेज।
अच्छा चले, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो थोड़ा सा लेट हो गया 5-10 मिनट, कोशिश करूंगी उसको इंशाल्लाह कवर अप जल्दी से कर दें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान के मुतालिक नेक्स्ट कर दें। अच्छा, मेरा थोड़ा सा ना फ्लो खत्म हो जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट कह के, मैं क्योंकि बगैर सोचे ही तो बोलती हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरा भी है। मैं एक्चुअली फिर भी मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे प्रॉब्लम हुई तो देन आई विल शेयर द लिंक। अच्छा जी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं सब लोगों को बताना चाहूंगी कि एक थोड़ा सा मिथ है सब लोगों को कि आईपी शायद ऑटिज्म के लिए, या आईपी जो है दिस इज समथिंग जो एक एजुकेशन प्लान है जिसको सोच के सिर्फ ऑटिज्म दिमाग में आता है। ऐसे नहीं है। आईपी एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी बच्चे, जो स्पेशल नीड बच्चा है उसके लिए बनाया गया, और ये स्पेशल नीड बच्चे की प्रॉब्लम्स या नीड्स एक दूसरे से फर्क हो सकती है। माइट भी वो सेरेब्रल पाल्सी हो, माइट भी वो डाउन सिंड्रोम हो, माइट भी वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, और माइट भी वो डिसलेक्सिया हो, एडीएचडी भी हो सकता है और ऑटिज्म भी हो सकता है। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बेसिकली वो एक एजुकेशनल प्लान है जो स्पेशल नीड स्टूडेंट के लिए क्रिएट किया गया है, जिसमें हमने वो सारी सर्विसेज, रिसोर्सेज, गोल्स और वो जो उसकी प्रॉब्लम्स है उसको नेक्स्ट कर दें, उसको डील करते हुए हमने करना है। नादिया नेक्स्ट करना। तो आईपी एक्चुअली कॉर्नरस्टोन है एजुकेशन का किसी भी स्पेशल नीड बच्चे के साथ। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईईपी में तीनों वर्ड्स की वैल्यू है। आई जो है ना, आई वर्ड दैट इज एक्चुअली द की वर्ड, दैट इज इंडिविजुअल, and the second one is educational, and the third one is plan और program. So जब हम individual की बात करते हैं तो इंडिविजुअल में आप सबने ये चीज याद रखनी है कि ये वाला जो आईपी जो हम एक स्पेशल नीड बच्चे के लिए बनाएंगे, दैट इज कस्टमाइज्ड टू दैट इंडिविजुअल। वो जो प्रोग्राम है इट इज टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ दैट इंडिविजुअल, दैट कैन नॉट बी फिट ऑन द अदर इंडिविजुअल। सो यहाँ पर जो एक और मसला हमारी सोसाइटी में है कि अगर किसी बच्चे का आईपी किसी ने अच्छा बना दिया है या उसने कोई अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब कर दिया है, तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो जो क्लिनिक्स पे और लोकल जो थेरेपिस्ट हैं वो उसी की कॉपी करके, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो वो उसी को उसी तरह कॉपी करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उस बच्चे का लेवल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे का लेवल आई कांटेक्ट पर नहीं है, रिस्पॉन्स टू नेम पे नहीं है, और एक बच्चे का लेवल सिटिंग पे नहीं है, कंप्लायंस 0 है, और आपने उस बच्चे को जिक्सा पजल्स ऐड किए हुए हैं, या आपने उसका इंसर्ट पीस लेवल नहीं है और आपने उसको जिक्सा ऐड कर दिए, तो इट इज हाईली हाईली लाइक अनएथिकल प्रोसेस कि आप इतना मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी, सब के सब थेरेपिस्टों को, कि जब आप एक आईपी बनाने के लिए जाएं तो आपको इस चीज पे ये हमेशा से याद रखना है कि इट डज नॉट मैटर कि वो कितना कलरफुल है, इट डज नॉट मैटर कि वो कितना उसमें स्पेलिंग एरर्स है। व्हाट मैटर्स इज कि वो उस बच्चे के हिसाब से बनाया गया, उसके लेवल के हिसाब से बनाया गया, और इट शुड बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस जिसमें एवरी टाइम देयर आर चांसेस, देयर आर लाइक ओपन एंडेड स्पेस के आप वहां पे जब चाहें वो बच्चे के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है एजुकेशनल। अब एजुकेशनल से आप लोगों के दिमाग में मोस्टली जैसे बाहर के मुल्कों में आईपीस उन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जिनके उन लोगों के वहाँ के फॉरेनर कंट्रीज में बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमसे बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे आईपीस उनके स्कूल में इनकॉर्पोरेट होते हैं उन बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड्स है। और यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आईपी का वो एक मिक्स गोल्स है, लेकिन ओवरऑल जो एजुकेशनल प्रोग्राम है इसमें हमने एक वैरायटी ऑफ गोल्स को डालना होता है दैट शुड बी कस्टमाइज्ड टू दैट चाइल्ड। जैसे वो वाले गोल्स उस बच्चे की नीड से भी रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक अगर उसको डिसलेक्सिया है, या उसको कोई फाइन मोटर इश्यूज है, या उसको कोई आईसाइट कमजोर है, या वो चल नहीं सकता, या उसको सपोर्ट चाहिए, कोई असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए, तो हम वो भी एजुकेशनल में डाल सकते हैं कि ये सर्विसेज हम देंगे, तो ये उसके प्लान्स में भी आ जाती है। लेकिन सर्विसेज में हमने करिकुलम भी डालना है, लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन में उसकी सेल्फ अवेयरनेस की एजुकेशन भी आ सकती है। नॉट ओनली कि आप सिर्फ करिकुलम और एकेडमिक्स को डालें, एजुकेशन में उसकी हाउ ही शुड बी ड्रेस्ड, हाउ ही शुड बी क्लीन,
और सबसे बड़ी बात, हाउ ही कैन यूज द टॉयलेट एंड हाउ व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट कैन मेक हिम इन्वॉल्व इन द प्ले और पीयर प्रोग्राम्स। इसी तरह बहुत सारी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज, फाइन मोटर एक्टिविटीज अदर देन कॉग्निटिव। तो ये सारी चीजें हमने साथ लेके उस बच्चे का एक एजुकेशनल प्रोग्राम बनाना होता है। और ऑटिज्म में तो हम फर्दर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को भी इस एजुकेशनल प्रोग्राम में डाल सकते हैं। अब तीसरी चीज आ जाती है प्लान और प्रोग्राम। ये प्लान और प्रोग्राम एक्चुअली ये भी जैसे एक कीवर्ड इंडिविजुअल है ना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, स्पेशली अगर हम ऑटिज्म के हिसाब से देखें। उस प्लान और प्रोग्राम में कोई भी आईपी नामुकम्मल होता है अगर हमने उन सर्विसेज का जिक्र ना किया, उन टूल्स का जिक्र ना किया, या उन स्ट्रेटजीज का ना जिक्र किया जिसकी वजह से हमने वो प्रोग्राम और प्लान बनाना है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो प्रोग्राम हमने क्या वो ऐसी चीजें हैं जो हमारे जो गोल्स हैं या हमारी एजुकेशनल जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगी। तो इट कैन नॉट बी सिंपली अ प्लान, इट इज अ प्रोग्राम। तो और ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली रोड मैप है टू वे टू गो। सो इट इज एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। तो आप एक बच्चे के फ्यूचर को मैनेज करने जा रहे हैं, उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम को मैनेज करने जा रहे हैं, यहीं से उसकी बेस डेवलप हो रही है। और अगर जिस बच्चे का आईपी उसके हिसाब से नहीं बनाया गया, यकीन करें उस बच्चे के आगे आने वाली लाइफ में, और अगर आगे से हमारे थेरेपिस्ट उसको फिक्स कर लिया उन्होंने और उसको मोल्ड करने की सलाहियत ना रखी, तो फिर वो आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम उस बच्चे के लिए क्रिएट हो सकती है। आगे कर दे। अब आईपी जो है वो बैक कर दे। आईपी जो है वो कॉर्नरस्टोन है बेसिकली बच्चे की स्पेशल नीड्स का। नेक्स्ट कर दे। अच्छा, अब हम जब इस पे बात करते हैं तो अब मैं चाहूंगी कि हम एक बच्चे का आईपी प्लान करने से पहले हम कुछ जरूरी टर्म्स हम लाजमन हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें वो टर्म्स नहीं पता तो उस तरह उस बच्चे का या उस टीचर का या उस पेरेंट का आईपी में रोल वो इतना नामुकम्मल सा रह जाता है। सबसे पहली बात कि आईपी जो आप बनाते हैं इट्स अ टीम वर्क। टीम वर्क ऐसे है कि एक बंदा आईपी नहीं बना सकता, क्योंकि अगर एक बच्चे को स्पेशल नीड इश्यूज हैं तो डेफिनेटली उसको अपने यानी उसकी फैमिली और उसकी होम से बाहर की असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए। और कभी कभी ऐसे होता है कि हमने एक बच्चे को जब डायग्नोसिस करना है या स्पेशल नीड्स करना है तो उस बच्चे को बहुत सारे लोगों के पास स्पेशलाइज भी भेजना पड़ जाता है। जैसे अगर किसी के घर में दादी ने डायग्नोज कर लिया, और जैसे कल भी मेरे पास एक बच्चा आया तो उसकी मदर ने उसको डायग्नोज किया हुआ था। शी वाज मास्टर्स इन इंग्लिश एंड शी सेड कि मैंने खुद डायग्नोसिस किया है और जब मुझे पता चला तो मैंने सब कुछ पढ़ लिया एंड मैंने घर में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। एंड आई वाज वर्किंग फॉर लास्ट। बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर थी और उस बच्चे के साथ कम से कम 1 साल से उसकी माँ काम कर रही थी। And she once had a checkup and then she started work. This is not the right way. You cannot be expert of anything, everything. आप ये देखें कि अगर मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ तो मैं एक अच्छी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट नहीं बन सकती, वो मेरी डोमेन नहीं है। इसी तरह अगर मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ तो मैं एक फिजिकल मेडिसिन के बंदे की जगह नहीं ले सकती। हर एक की एक अपनी सब स्पेशलिटी है। तो ये एक टीम वर्क है। जिस बच्चे को जिसकी जरूरत है वी नीड टू कंसल्ट दैट पर्सन एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली। नंबर 2 जो कस्टमाइज्ड वाला बात है वो मैंने अभी आपसे शेयर की है कि दिस शुड बी टेलर टू दैट इंडिविजुअल ओनली। तीसरी चीज आती है कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, इसलिए कि अगर एक बच्चे का डायग्नोसिस में ही प्रॉब्लम है और उसके बाद आपने उसको केयर और कंसिडर नहीं किया तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके आईपी को फंक्शनिंग ही नहीं करने देंगी। जैसे अगर एक बच्चे को फॉर एग्जाम्पल वो ऑटिज्म का बच्चा है और उसके आईपी के साथ अब स्टक हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली उसको एडीएचडी भी था और एडीएचडी बहुत सीवियर था। तो यू नो एडीएचडी इज समथिंग दैट कैन बी समटाइम्स मैनेज्ड विद ड्रग्स, दैट्स द ओनली कंडीशन। सेकेंडली अगर उस बच्चे को डिसलेक्सिया था और साथ ऑटिज्म था तो वो एक अलग से मसला है कि आपको डिसलेक्सिया को भी डील करना पड़ सकता है। तीसरी चीज, अगर उस बच्चे को फर्ज करे कि ऑटिज्म तो था ही लेकिन थोड़े से फीचर्स उसको एंजाइटी के थे या उसको सेरेब्रल पाल्सी के थे या डाउन सिंड्रोम के थे, तो ये वो चीजें हैं जो उसकी हेल्थ को भी डैमेज करेंगी
और इसके अलावा उसकी फंक्शनिंग और आईक्यू लेवल को भी करेंगी। तो हमने बहुत ही ध्यान के साथ इसका डायग्नोसिस बनाना है ताकि हम अपनी वर्किंग और आईपी की बेहतर वर्किंग में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आ जाता है आईपी बनाते हुए कि आपने ये वर्ड यूज नहीं करना। एक्चुअली दिस वर्ड इज लाइक हाई फंक्शनिंग एंड लो फंक्शनिंग स्पेशली यूज फॉर ऑटिज्म। मेरी लास्ट प्रेजेंटेशन में भी मैंने ये बात की थी कि अब दुनिया में ये वर्ड ही इन बच्चों के लिए भी ऑब्सोलीट होता जा रहा है। इसकी मिसाल इसलिए मैं देना चाहूंगी अपने नॉर्मल बच्चों से। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, एक ओ लेवल्स का है और एक 7th का है। अगर मेरे एक बच्चा आर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा है और दूसरे बच्चे को आर्ट्स पसंद ही नहीं है, तो मैं क्या उसको लो फंक्शनिंग कहूंगी? स्पेशली अगर उसके स्कूल में उसे मैथ्स में कैलकुलेटर कहा जाता हो, वो उसका मैथ इतना अच्छा और बड़े वाले का मैथ उतना अच्छा ना हो। इसलिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एक ऑटिज्म का बच्चा भागता दौड़ता नजर आए, हाइपर एक्टिव, या आपको बिहेवियर थ्रो करता नजर आए, आपने उसको ग्रेडिंग और लेबलिंग की हो लेवल 2, 3, 4। कहने का मकसद ये, और एट द सेम टाइम वो बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा हो, या वो बच्चा आपकी लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत अच्छा हो, ये बच्चा आपकी लाइक बहुत सारी वोकेशनल स्किल्स में बहुत अच्छा हो। तो इसलिए आपने जब भी आईपी बनाना है, आपने बियॉन्ड बाउंड्रीज बनाना है। आपने उस बच्चे के साथ जब एक वर्ड यूज किया ना कस्टमाइज, तो आपने उसकी नीड्स तो देखनी है, उसकी स्ट्रेंथ्स भी देखनी है। क्योंकि अब आपका आईपी जो है वो एक स्पेशल नीड बच्चे का है, लेकिन अगर वो स्पेशल नीड बच्चा ऑटिज्म का है, तब आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपको बहुत चेंज माइंडसेट के साथ आगे जाना है। और उसके बाद आपके जो प्रायोरिटी क्राइटेरियाज प्रोग्राम की क्या है, वो हर बच्चे के लिए फर्क है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रायोरिटी क्राइटेरियाज में, वो ये कि आपके बच्चे का बेस लाइन करंट और या प्रेजेंट लेवल आपको सही पता होना चाहिए। उसके बाद आपके बच्चे का एक टीम वर्क के साथ जब आप चलें, तो उसमें आपने उस बच्चे की नीड्स को देखना है। जैसे अगर हम ऑटिज्म के बच्चे की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड करें नादिया। नादिया नेक्स्ट स्लाइड, बैक स्लाइड कर, ठीक है, नहीं बैक कर, ठीक है। अब आपने ये करना है कि अच्छा, अभी हम आईपी की टिप्स और टेक्निक्स पे ही बात करेंगे। उसमें ये है कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडिफाइड और अडेप्टेड आईपीस क्या है। अडेप्टेड आईपीस आपको पता है वो है जिनको हमने करिकुलम को उस बच्चे के हिसाब से हमने स्पेशली वो स्कूल में हम चेंज कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। मॉडिफाइड ये है कि आपने उस बच्चे के लिए बहुत सारी चीजों को आपने मॉडिफाई कर लिया। अडेप्टेशन बेसिकली एक रूटीन की प्रैक्टिस है जो हम कर रहे होते हैं। मॉडिफाइड इज समथिंग टारगेटेड फॉर दैट स्पेशल नीड चाइल्ड। अभी हमने बात की कि हम डायग्नोसिस से शुरू करेंगे, टीम और क्रिएट करेंगे, और आईपी मीटिंग्स को भी प्लान करेंगे। आईपी मीटिंग में हमें पेरेंट्स का बहुत रोल है। पेरेंट की सजेशंस को सुनना भी चाहिए और पेरेंट्स को पूरा वर्कअप करके आना चाहिए उस मीटिंग के अंदर। और उसके बाद पेरेंट्स अपने कंसर्न्स भी शो कर सकते हैं, उसका लेवल भी शेयर कर सकते हैं, और एक ओपन एंडेड प्लेस होनी चाहिए और एक ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट कर दें। एक्चुअली मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ नेक्स्ट करके जी नेक्स्ट करती जाए। ये कुछ वैसे ही एक पिक्चर्स मैंने शेयर किए अपने इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे ये दिखाया गया। नेक्स्ट कर दे नादिया, तेजी से कर दे वरना हमारी प्रेजेंटेशन बहुत लंबी चली जाएगी। तो ये जो है ना, ये इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि किस तरीके से पेरेंट्स और थेरेपिस्ट इन्वॉल्व है। बैक स्लाइड पे फादर और ग्रैंड पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं अगर लोग देखना चाहें, कि इस तरीके से हम जो है वो सबको साथ लेके चल रहे थे। एवरीबडी इज एट वन प्लेस, ठीक है। और ये इसमें यू मे नीड मोर देन वन मीटिंग इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग गुड। नेक्स्ट। अब ऑटिस्टिक बच्चों के लिए आपने जो याद रखनी है बात, वो ये कि उनकी प्रेफरेंस असेसमेंट और स्ट्रेंथ्स को भी ज़हन में रखें, और स्किल्स को और फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट और बिहेवियर प्लान्स भी हमें डालने पड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक बात बतानी है कि अमेरिका में इतना बड़ा कंट्री है, दुनिया जहाँ की थेरेपीज ऑटिज्म के लिए होती है, जब वहां पे एक सर्वे कराया गया, रिसर्च इस वक्त मेरे पास अवेलेबल आर्टिकल नहीं है उसका लिंक, एक रिसर्च की गई जो बहुत सारी जगहों पर की गई स्टेट्स में, और उन्होंने जिन बच्चों के वो एक्चुअली इलोपमेंट पे, जो सेफ्टी स्किल्स पे, और जो बच्चे गेट से भाग जाते हैं, ये कुछ साल पहले की रिसर्च है। तो जब वो की गई तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन किया बच्चों के माँ बाप से
कि उन सब के सबको इलोपमेंट का ही खौफ था कि बच्चे छोड़ेंगे तो भाग जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, उनको सेफ्टी का नहीं पता, रोड्स का नहीं पता, उनको स्टॉप का नहीं पता, उनको वेट का नहीं पता। और जब उनके आईपीस को देखा गया तो बड़ी हैरत की बात है कि किसी मतलब अबाउट 80 to 90% ऑफ जो थे ना उनकी जो आईपीस, उनमें सेफ्टी स्किल्स के गोल्स ही नहीं थे, बाकी सब कुछ था। ये अमेरिका की रिसर्च है। तो इसमें आप ये देखें कि इतना बड़ा एलिमेंट मिस हुआ। आपको पता है उसके बाद ऑटिज्म स्पीक्स और बाकी लोग सामने आए, उन्होंने सेफ्टी लोकमेंट और उसमें पूरे पूरे प्रोटोकॉल्स बनाने शुरू कर दिए। सेम हियर विद अस, हम लोग जब भी प्रोग्राम बनाते हैं हम सब कुछ आईपी में बना रहे होते हैं और 3-4 मेन चीजें हम ऑटिज्म की नहीं बना सक रहे होते हैं, बल्कि वी आर लिटरली एब्सेंट माइंडेड अबाउट दीज थिंग्स। सबसे इम्पोर्टेंट वो सेफ्टी है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो सेल्फ हेल्प स्किल्स है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो इंडिपेंडेंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो ट्रांजिशन है, देखेंगे, और कंप्लायंस या कम्युनिकेशन है। जब आप ऑटिज्म पे बात करते हैं तो ये 5 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके आईपीस की जड़ होनी चाहिए, जिनके बगैर माँ बाप की जिंदगी दिन रात वो उनके नहीं गुजर रहे होते, और वो उनके लिए बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। इस चीज को पहले टारगेट करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दे नादिया। तो जब भी आप आईपीस बनाएं तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। S is for specific, M is for measurable, A is for attainable, R is for relevant or realistic, and last is time bound. अब ये वाली जो चीज है ना, अच्छा एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी मिस अजरा और नादिया के रेफरेंस से, कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें मैंने बहुत सारी आप लोगों को ऑनलाइन शेयर करने की वजह से कुछ 1-2 अदारों की प्रेजेंटेशंस में से स्लाइड्स ली हैं, क्योंकि इट वाज लाइक 11th आवर प्रेजेंटेशन, और अगर ये लाइव होती तो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता, हम लोग कोई फोटो स्टेट या कुछ चीजें डिलीवर कर देते। आई वुड सजेस्ट कि इसकी स्लाइड्स को आगे तस्वीर खींच के शेयर ना करें, क्योंकि ये इदारों की इमानत होती है। तो और मैंने यहाँ से पढ़ा हुआ है इसलिए आई कैन यूज। तो उसमें ये है कि ये स्मार्ट जो फॉर्मूला है ना, ये आपने याद रखना है। जब भी आप कोई भी गोल बनाए आपको पता होना चाहिए कि वो स्पेसिफिक है, आप उसको मेजर कर सकते हैं, वो अचीव हो जाएगा भाई। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स जो है वो 1 से 3 महीने के होते हैं, लॉन्ग टर्म आमतौर पे 1 ईयर के होते हैं, बट माइट टेक मोर। और रियलिस्टिक होने चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि उनका कोई दुनिया से कोई अता पता कोई लिंक होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उनका खाना पीना, टॉयलेट, सेल्फ हेल्प, उनकी सेफ्टी, ये रियलिस्टिक गोल्स है भाई, इनको आपने ट्रीट करना है। उसके बाद है कि अगर वो टाइम बाउंड नहीं है ना, तो फिर ऐसे काम करने का कोई फायदा नहीं है। अगर थेरेपिस्ट को भी अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, माँ बाप को भी कन्वे होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स थे, क्यों नहीं हुए? अगर 3 महीने में एक चीज होनी थी तो क्यों नहीं हुई? तो और अगर 1 ईयर में होनी थी तो वो क्यों नहीं अभी तक हो रही? तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे का बहुत कीमती टाइम होता है। नेक्स्ट स्लाइड नादिया। अच्छा, जब भी आपने आईपी बनाने हैं तो यहाँ पे ये मैंने जो बातें, ये टर्म्स लिखी है ना, ये डेफिनेशंस, मैं इन डेफिनेशंस को नहीं बताऊंगी, लेकिन इनमें से सीधा सीधा बातें मैं जरूर आपको बताऊंगी कि आपने एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट जब करना है तो you need some tools, you need some services, you need some methodologies, and you need something to assist you. You should be knowledgeable enough to implement all these. जब एक ऑटिज्म के बच्चे की स्पेशली हम एक आईपी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं तो हम इन चीजों में से गुजरना पड़ता है। तो आपने ये याद रखना है कि प्रॉम्प्टिंग की आपको प्रॉम्प्ट कैसे करना है बच्चे को, किस तरीके से आपको होता है। फिजिकल प्रॉम्प्ट्स है, टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट्स है, वर्बल प्रॉम्प्ट्स है, जेस्चरल प्रॉम्प्ट्स है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको फेड कैसे करना है। नंबर 2, अगर आपको रीइंफोर्समेंट्स के यूज पता है और रीइंफोर्सर्स की लिस्ट आपने पहले से बना ली है, और आपको ये पता हो कि अगर एक बच्चे के रीइंफोर्सर्स है ही नहीं तो भी आपको क्रिएट करने हैं, व्हाट एल्स यू कैन डू, यू कैन गो इनटू द सब्जेक्ट एंड रीड दैट। इसके अलावा आपको फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट के एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस के प्रोटोकॉल्स पता हो, ताकि आपने एक बच्चे का आईपी में बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान्स बनाने तो माँ बाप को भी गाइड कर सके और आपको भी पता हो। और पेयरिंग मैंने इसलिए लिखा है कि कोई भी गोल जब आप अचीव कर रहे होते हैं, अगर टीचर की बच्चे के साथ पेयरिंग ही नहीं है तो वो फिर वो सही वो गोल्स
अचीव ही नहीं हो सकते। और चेनिंग पे मैं सिर्फ ये बात करूंगी कि चेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको बहुत सारे आईपी के गोल्स पे हम डालते हैं। इस प्रोसेस को किसी में हम बैकवर्ड चेनिंग कर रहे होते हैं, किसी में फॉरवर्ड चेनिंग कर रहे होते हैं। सिर्फ आसान करके एक लफ्ज बता देती हूँ, जैसे जो टॉयलेट स्किल्स है मोस्टली हम उसमें बैकवर्ड चेनिंग से चलते हैं। बैकवर्ड चेनिंग ये है कि सारे के सारे आपने स्टेप्स को डिवाइड किया और बच्चे के साथ सारे आपने करा दिए, खुद करवा दिए, लेकिन लास्ट स्टेप फर्स्ट करें ड्राई हैंड था, वहां पे आपने बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दी कि वो खुद थोड़ा सा आगे आए और खुद अपने हाथ ड्राई करे और आप उसको वहां पे प्रॉम्प्ट करें। आपने एक टास्क एनालिसिस बनाया हुआ है, किसी भी आपने जो भी गोल डिसाइड किया उसके छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया और लास्ट स्टेप को आपने प्रॉम्प्ट कर दिया है। और फिर उसी लास्ट स्टेप में आपने अपनी प्रॉम्प्ट को फेड करना है, और जब वो वाला लास्ट स्टेप बच्चे से इंडिपेंडेंट हो जाए तो वहां से बैक स्टेप्स पे उसको हम लेके जाते हैं। और कभी कभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग को हम इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं। डिस्क्रीट ट्रायल्स यही है कि आपने किसी भी चीज को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना है और इमिटेशन सबको अंदाजा होगा। मेंडिंग इज एक्चुअली एक वर्ड है जो रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, और लेबलिंग एक ऐसा वर्ड है, आगे हम बात करेंगे एबल्स आर की, तो उसमें ये जहाँ टैक्टिंग का यूज हुआ है एक्चुअली लेबलिंग के लिए हुआ है। और इंट्रा वर्बल्स उन बच्चों के गोल्स बनाए जाते हैं जो थोड़े वर्बल होते हैं और ये फ्लैश कार्ड्स के बगैर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नादिया। और ये सारी चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हम आगे आपको उसमें दिखाएंगे भी कि आप विजुअल स्ट्रेटजी, स्केड्यूल्स, टोकन इकोनॉमीज, बिहेवियर प्लान, सोशल स्टोरीज, प्ले स्किल्स, काम डाउन किड्स, आपकी कुछ बुक्स, ऑडियो बुक्स, चॉइस स्पोर्ट्स, पैक्स, और ये सब कुछ आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके टूल्स हैं, आपकी वो सर्विसेज हैं या असिस्टेंस टेक्निक्स हैं जो आपको एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईपी के लिए चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरी बात ये कि ये प्रेजेंटेशन मैंने कहीं और भी देनी पड़ जाती है, तो इसको जरा रखिएगा अपने पास। नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर डॉक्टर ये मैंने दिखाया है कि अगर आप लोगों को नजर आ रहा है कि बेसिकली प्रॉम्प्ट्स दिखाई गई है। नेक्स्ट कर दें नादिया, तेजी के साथ कर दें नादिया। ये प्रॉम्प्ट्स फेड करने का प्रोसीजर दिखाया गया है कि आपने पहले देनी कैसे और फिर आपने फेड कैसे करनी है। नेक्स्ट। और यहाँ पे कुछ विजुअल्स दिखाए हैं कि आप वर्कशीट्स ऐसे भी बना सकते हैं। इसके ऊपर लिखा है वो वाली आइटम्स फाइंड करें जो हार्ड है, और आप इसको कलर करके बना भी सकते हैं। नेक्स्ट। और आप सोशल स्टोरीज भी प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट। और इसके अलावा ये वाली जो चीज आई है, अब आप एक बच्चे का आईपी बनाने जा रहे हैं। जब आईपी बनाने जा रहे हैं तो अब आपके पास की कुछ चीजें आपको ऑब्वियस होनी चाहिए टर्म्स। वन इज करिकुलम, अदर आर स्किल्स, थर्ड इज टास्क। देखिए एक चीज तो तय है कि जो करिकुलम है वो आपको पता है कि समथिंग एज अ होल है, यानी जिसमें बहुत सारे गोल्स, बहुत सारी डोमेन्स, बहुत सारे एरियाज होंगे। स्किल्स ये है कि हमने बच्चे की डिफरेंट स्किल्स को टारगेट करना है जो उसके लिए अप्रोप्रिएट है। टास्क बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। और टास्क एनालिसिस ये टर्म है जिसमें हमने एक टास्क को डिवाइड कर दिया, बहुत एक बड़े टास्क को। जैसे एक बच्चे ने अपना हाथ धोना है सोप से और ड्राई करने हैं, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया एक टास्क में। सबसे पहले वो सोप को पकड़ेगा, फिर उसके बाद वो उसको रिंस करेगा, फिर उसके बाद उसको फोम बनाएगा, उसमें वॉश हैंड करेगा, उसके बाद ड्राई करेगा, और उसके बाद दिस एक स्टेप को हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह आप इन स्पेशली ऑटिज्म के बच्चों को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करके किसी भी टास्क को कर सकते हैं, और उसके बाद डेटा ट्रैकिंग अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। टारगेट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है, अगर तो बैड बिहेवियर है और उसको आपने ठीक करना है तो दैट इज द टारगेट बिहेवियर। और लर्न बिहेवियर ये चीज होती है कि आपने एक बच्चे को अगर एक बच्चे ने हमेशा रिक्वेस्ट की बजाय रो कर अपनी डिमांड पूरी कर ली है, तो अगली बार उससे ज्यादा रोएगा। तो एक्चुअली ये एक लर्न बिहेवियर है, और आपको लर्न बिहेवियर्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट। इंशाल्लाह ये डॉक्टर्स ना आपके प्लेटफॉर्म से ही हम एबल्स आर पे हम वैसे भी एक शुरू कर रहे हैं क्रैश प्रोग्राम, तो एबल्स आर को हम यहाँ से भी इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। एक्चुअली नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस। हाँ जी, इसमें आपने ये याद रखना है कि आपको गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। तो गोल्स ये हैं कि गोल्स एक बेसिकली एक वो बेसिकली डोमेन है, या वो ये कह लें कि एक मेन गोल है जिसको आपने अपने आईपी से इम्प्लीमेंट करना है, और उसके आगे आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को ही हम टास्क समटाइम्स कहते हैं। तो और ऑब्जेक्टिव जो है ना वो एक्चुअली गोल्स का सब पार्ट है।
और आईपी जो है ना उसमें बाकी बेसिक स्किल्स और सर्विसेज का जिक्र मैंने कर दिया है। मैस्ट्री क्राइटेरिया ये है कि आपने जब भी कोई गोल, उसके टास्क, ऑब्जेक्टिव्स बनाने और उसको काम करना है, तो आपको बेसिकली कम से कम अगर उसका अचीवमेंट क्राइटेरिया ये होगा, मैस्ट्री क्राइटेरिया, कि वो विदाउट एनी प्रॉम्प्ट कम से कम 4 से 5 दिन मुसलसल पॉजिटिव हो, अचीवेबल हो, लेकिन उसमें एक सिंगल किसी भी तरह की प्रॉम्प्ट ना हो। ये एक दिन में 5 दफा नहीं है, 5 दिन मुसलसल हैं, कुछ जगहों पे 4 दिन में, और कई जगहों पे 80% ऑफ द टाइम लिखा गया है। अगर आपने डिस्क्रीटली जो गोल्स डिवाइड किए हैं, टास्क एनालिसिस किए, छोटे से छोटे स्टेप को आपने कम से कम 4 दिन तक मुसलसल विदाउट प्रॉम्प्ट किया, तब उसको कहेंगे ये मेस्टर्ड है, तब उसके नीचे आप क्रॉस लगाएंगे, तब आप नेक्स्ट पे, उससे नेक्स्ट पे जाएंगे। लेकिन इसको छोड़ेंगे फिर भी नहीं, आप इसको जनरलाइजेशन में लेकर जाएंगे, और इसके अलावा आप इसको मेंटेनेंस गोल्स में डाल देंगे। मेंटेनेंस गोल्स वो होते हैं जिसमें आप इन बच्चों के गोल्स को कभी कभार कराते रहते हैं ताकि उनकी मेमोरी में रहे और उनसे ना चला जाए। नेक्स्ट नादिया। ठीक है, अब ऑटिस्टिक बच्चों के लिए मैंने अभी बता दिया, ये कुछ एरियाज है जिसपे हमें ज्यादा विजिलेंट होना पड़ता है। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें मैं आपसे सिर्फ एक बात करूंगी, बैक स्लाइड कर लें, कि इसमें लिखा प्रेजेंट लेवल और करंट लेवल। अब मैं इस पे आपको ये बताऊंगी कि 3 मिसालें दूंगी आपको। एक तो मैंने जिंदगी में पहली बार जिस बच्चे का आईपी बनाया वो मेरी दोस्त का बेटा था, और बिलीव यू मी वो इतना हाइपर एक्टिव था कि वो उसको 8-8 लोग पकड़ते थे और वो 2 सेकंड के लिए भी नहीं बैठता था। और आप यकीन नहीं करेगी कि 15 से 20 दिनों में मैंने उसके 8 आईपीस बनाए, क्योंकि जो भी आईपी बना रही थी तो वो उस तरीके से वर्कआउट नहीं हो रहा था। फिर मुझे दोबारा से आईपी उसके लेवल के, मैं जब आईपी बनाती थी उसके साथ काम करती थी, तो बल्कि टीचर्स कर रही थी तो मैं देखती थी कि वो तो पिछले इश्यूज ही नहीं सॉल्व हो रहे, तो ये इस पे कैसे आएगा। तो एवरी टाइम मैंने उसको कोई 15-17 दिनों में, मतलब आई वाज सो डिसअपॉइंटेड एट वन डे, कि उस दिन मैंने एक डिफरेंट ही तरह का आईपी बनाया और बिल्कुल एग्जैक्टली प्रेजेंट लेवल पे उसकी प्रॉब्लम्स के साथ बनाया। तो एंड इट वर्कड, एंड इट टुक अबाउट 8 आईपीस इन 17 days। तो एक मैंने ये अपनी, और तब मुझे पता चल गया कि फ्यूचर के लिए कि एक्चुअली हमने करना क्या। नंबर 2, मैंने एक बच्चा देखा, आई वोंट नेम द स्कूल, इन लाहौर, बड़ा रिनोन है, और वहां से एक पेरेंट आई, नाउ शी मूव टू सऊदी अरेबिया। उस बच्चे को 2 साल से वो वहां पे बच्चा जा रहा था और उसके गोल्स में से सिंगल गोल अचीव नहीं हुआ था। और जब हमने उसको देखा तो उस बच्चे के गोल्स इतने, मतलब टफ गोल्स थे, लाइक जिक्सा पजल्स और ये लेवल, वही वाली बात कि आपने किसी को कॉपी कर लिया है और उसकी तस्वीर खींच ली है और उसको वैसे ही गोल बनाना शुरू कर दिया है। तो एक्चुअली उस बच्चे का जितना वो अच्छा बच्चा था, वो कभी गोल इसलिए नहीं अचीव कर सका क्योंकि उसका आईपी उसके प्रेजेंट लेवल का नहीं था। तो ये बड़ी वो वाली बात है कि जिसको थोड़ा सा हमें ज्यादा ही वॉचफुल होना पड़ता है। इसके अलावा मैंने ना, एक डॉक्टर थी मेरे पास, गायनी की, वो आई थी, अभी वो यूके में है। उनके बच्चे का जब वो आई तो उन्होंने आरबीटी का कोर्स भी किया हुआ था और बड़ा कुछ किया। तो उन्होंने मुझे पास आके सिर्फ एक ही बात की, डॉक्टर निका मेरा सब कुछ फेल हो गया। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, इट्स अबाउट 3 years to go, कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को बुलाऊं, कम हियर, तो वो आ जाए। बाकी मुझे आईपी में ये पजल भी बना लेता है और ये सब कुछ कर लेता है, लेकिन मैं उसको कहती हूँ कम हियर, या मेरी बात सुनो, या सिट डाउन, कंप्लाइंट नहीं। तो देखिए ये प्रेजेंट लेवल इतना इंपॉर्टेंट है, इसी पे सब कुछ बेस करता है। नेक्स्ट स्लाइड जी। ये अभी ट्रीटमेंट प्लान एज अ होल है, नेक्स्ट कर दे नादिया। ये लेसन प्लान्स हम अभी बनाएंगे और ये हम एक डोमेन से लेसन प्लान्स लेंगे और उसके बाद उसको डिस्क्रीटली डिवाइड करेंगे और प्रॉम्प्ट, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई वगैरह को यूज करेंगे। नेक्स्ट नादिया। और ये लर्निंग डोमेन्स जो है ना, ये आपने खुद डिसाइड करनी है कि आपने कहाँ पे बेसिकली उस बच्चे को जरूरत है, उसको वहां से हम लर्निंग मेन डोमेन है, उससे हम फर्दर गोल बनाएंगे, उससे हम फर्दर उसके टास्क और फिर टास्क एनालिसिस और फिर इस तरीके से क्राइटेरियाज और मेस्ट्री क्राइटेरिया और फिर डाटा एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट नादिया। टारगेट स्किल पे भी अभी बात हुई है। नेक्स्ट नादिया। ये भी मैंने बता दिया, आगे ले जाए। और ये हम डिफरेंट असेसमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट।
असेसमेंट्स बाहर के मुल्कों में BCBS करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो भी है क्वालिफाइड हमारे प्रोफेशनल्स वो कर सकते हैं, और फिर उसको हम डेटा रिकॉर्ड में ये चीजें करेंगे। नेक्स्ट, और असेसमेंट में बिहेवियर प्लान्स का और उसका भी डेटा रखेंगे, क्योंकि अभी बात हुई है कि ऑटिज्म के बच्चों में बिहेवियर्स और वोकेशनल और बहुत सारी सेल्फ हेल्प की चीजों को भी हम लेंगे अदर देन द कॉग्निटिव और एकेडमिक्स। नेक्स्ट नादिया, और उसके बाद उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे, और ये एक सेपरेट टॉपिक है। तो और हम डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं, जिनमें से एक VB मैप है। नेक्स्ट नादिया, नादिया करते जाए, जहां मैं रुकना होगा आपको बता दूंगी। और सोशल स्किल असेसमेंट्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, और एबल्स-आर भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे टूल्स हैं जिससे हम असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट, हम यहाँ पर ना एबल्स-आर पे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि VB मैप एक सेपरेट टॉपिक है। एबल्स-आर उसमें कम सेक्शंस है, इसमें ज्यादा सेक्शंस है, लेकिन यहाँ पे आज हम एबल्स-आर की बात करेंगे, क्योंकि हमने IEP के कुछ सैंपल्स यहाँ से बनाने। तो एबल्स-आर के टूल्स को यूज करें तो ये लोग एबल्स-आर को कंप्लीट कर सकते हैं, इवन आप पेरेंट को भी एजुकेट कर सकते हैं एबल्स के लिए। नेक्स्ट नादिया, और एबल्स-आर में बहुत सारे सेक्शंस हैं जो सिर्फ कॉग्निटिव के अलावा उसकी इमिटेशन, मेमोरी, करिकुलम और डिफरेंट डोमेन्स को डील कर रहे होते हैं, और स्पेशली ऑटिज्म के बच्चों के लिए भी। तो हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी डिस्क्रीटली डिवाइड करके बनाएंगे, और थोड़े आसान है इनको बनाना। और यहाँ पे हम 20 से 30 ऑब्जेक्टिव्स को बेसिकली ले सकते हैं डिफरेंट डोमेन से, वो हमने खुद डिसाइड करनी है। और जब मेस्ट्री क्राइटेरिया अचीव हो तो हम न्यू टास्क या ऑब्जेक्टिव्स को डाल सकते हैं। और अगर कोई बच्चा नॉन वर्बल है या बहुत इनिशियल लेवल पर है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो इसकी डोमेन्स A से P तक के दरमियान में उनको फर्स्ट टारगेट करें, लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद एबल्स-आर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि एबल्स-आर सिर्फ एक करिकुलम है, ये बच्चों के साथ कनेक्ट करने का नहीं बताता, ना ये बताता है प्ले कैसे करना है, ना ही बताता है पेयर कैसे करना है। लेकिन और थोड़ी सी एज लिमिटेशंस भी है। कुछ लोग कहते हैं कि एबल्स-आर 5 साल से छोटे बच्चों को ज्यादा वर्कआउट करता है और उससे ज्यादा लोगों के लिए, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कहीं भी किसी भी जगह पे आप एबल्स-आर को मोल्ड करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बाकी ये कि नॉट वन थेरेपी और टूल फिक्स्ड फॉर लाइक इज फिट्स फॉर ऑल। सो आपको बहुत ओपन माइंडेड होना चाहिए, ताकि आप कुछ भी यूटिलाइज करें। जहां दिल करे वो टीच मेथोडोलॉजी यूज कर लें, जहां दिल करे वो टीच के गोल्स के अलावा फ्लो टाइम के गोल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में असिस्टिव डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। आप किसी भी जगह पे अपने बच्चे के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हिज नीड्स एंड स्ट्रेंथ्स। नेक्स्ट, वैसे भी टीचिंग को नीड बेस्ड होने की बजाय जॉय बेस्ड ज्यादा होना चाहिए, ताकि एक भरपूर सा प्रोग्राम बने। ये उसके डिफरेंट डोमेन्स है, 25 स्किल डोमेन्स है A से लेकर Z तक। नेक्स्ट नादिया, आप इन सेपरेट डोमेन्स में ना अलग-अलग से उन्होंने टास्क ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद उसका ST इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद उसका हाउ टू लाइक अचीवमेंट क्राइटेरियाज के स्टेप वाइज, फिर मेस्ट्री क्राइटेरियाज के उस पर लिखे हुए आमतौर पे 4 तक नेक्स्ट कर दें। और इसी तरह हम उसकी प्रॉपर असेसमेंट करते हैं डिफरेंट डोमेन्स में। नेक्स्ट नादिया, नादिया नेक्स्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि जो बेसिक लर्नर स्किल्स है वो A से P तक है, उसके एबल्स-आर की एकेडमिक स्किल्स Q से T तक है, सेल्फ हेल्प स्किल्स जो है वो U से X तक है, मोटर स्किल्स Y से Z तक। ये जस्ट एक आपको रफ नॉलेज के लिए दिया गया है, क्योंकि सब लोगों को शायद इसका पता ना हो। नेक्स्ट, और ये डिफरेंट डोमेन्स हैं, ये मैंने मजीद लिख दिया ABCD, और ये आप गुजार दें, ये उसको आगे क्लास। ये डोमेन्स हैं, ये बेसिकली हम जब डोमेन की बात करेंगे और हम कहेंगे A, तो एक्चुअली हमने नादिया जब बैक स्लाइड करना, अगर हमने फर्ज करें V की डोमेन पकड़ी है तो बेसिकली ईटिंग की है, और अगर हमने S की पकड़ी है तो वो राइटिंग की है, Z की पकड़ी है तो फाइन मोटर है। एक्चुअली जब हम डोमेन्स पे बात करेंगे तो दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग, वी एक्चुअली उस फाइन मोटर स्किल्स की डोमेन को हम पकड़ेंगे, और वहां से फिर अपने बच्चे के हिसाब से हम 1 2 3 करके गोल्स बनाएंगे। उन गोल्स के आगे से ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें टास्क एनालिसिस भी करना पड़ सकता है, मेस्ट्री क्राइटेरियाज को अचीव करेंगे। नेक्स्ट,
और ये जैसे उन्होंने बी सेक्शन का बताया है कि ये B3-4 इस तरह से डिवाइड हुआ है, ये एक विजुअल परफॉर्मेंस का डोमेन है जो कॉग्निटिव बेस्ड है, और इसको स्टेप वाइज बच्चे के साथ जैसे मैच आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू सैंपल, मैच ऑब्जेक्ट्स टू पिक्चर्स, मैच आइडेंटिकल पिक्चर्स टू पिक्चर्स, इस तरीके से पिक्चर्स टू ऑब्जेक्ट, इस टाइप के गोल बने होते हैं। नेक्स्ट ये अब एक बैक स्लाइड करें, मैं आपको बताती हूँ कि देखिए यहाँ पे ना V1, 2, 3, 4, 5, 6 बेसिकली उस डोमेन में ईट फिंगर फूड्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईट फिंगर फूड्स तो माँ बाप को लिख के दे देंगे ना कि ही हैज टू ईट द फिंगर फूड्स इन द IEP, लेकिन आप अपने थेरेपिस्ट को गाइड करेंगे, उसका प्रोग्राम बनाएंगे कि हाउ वी विल हेल्प हिम ईट द फिंगर फूड्स, और माँ बाप को हम IEP की ट्रेनिंग देंगे कि आपने घर में कैसे कराना है, और एट अ टाइम सभी सीख रहे होते हैं। एक अच्छा थेरेपिस्ट खुद भी सीख रहा होता है, माँ बाप को भी एजुकेट कर रहा होता है, और लोगों को भी कम्युनिकेट सही कर रहा होता है। नेक्स्ट ये बेसिकली डिफरेंट डोमेन्स की बताया गया है। एक ही डोमेन्स कोऑपरेशन और रीइंफोर्समेंट के आगे चले नादिया, बी की विजुअल परफॉर्मेंस की है, सी की रिसेप्टिव, एच इंट्रावर्बल्स, और ऐसा इस तरह मेन डेटा शीट्स भी आप अपने पास रिकॉर्ड रख सकते हैं। मेन रिक्वेस्ट है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो टूल्स हैं जो आपको IEP बनाते हुए आपके हाथ में होनी चाहिए, ये माँ बाप को नेक्स्ट कर दें। और इसमें एक आसान करके भी मेड लिस्ट, मेड एक्चुअली रिक्वेस्ट लिस्ट है, ये असल में है माँ बाप के लिए, और जो दूसरे वाली है वो प्रोफेशनल्स के लिए, या जो भी इसको ज्यादा हाईफाई तरीके से रखना चाहते हैं। नेक्स्ट अच्छा डॉक्टर अनीका, अब हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स ही रह गए हैं। अच्छा, तो मैं इसको बस 5 मिनट्स में आगे ले जाती हूँ बस। ठीक है, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट लेकिन करो। हाँ जी, नहीं यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि ये तो एबल्स आर की थी ना, जो हमने बताया कि आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और यहाँ पे प्ले बेस्ड भी हम बच्चे को डिस्क्राइब कर सकते हैं थेरेपिस्ट को। नेक्स्ट जल्दी जल्दी नादिया ले जाओ। ये टास्क एनालिसिस मैंने बात कर ली है कि जैसे आपने बाथरूम की स्किल्स को। नेक्स्ट और इस तरह ये रेपिटेशन एक्चुअली ये स्पीच के गोल्स है, और इसको इसलिए दिखाया गया है और या प्ले के, जिसमें हम अपने बच्चे को जब इम्प्लीमेंट करते हैं, इट इज बियॉन्ड एबल्स आर, तो हम इसको इस तरीके से भी सिखा सकते हैं कि आपने कैसे जनरलाइजेशन में लेके जाना है। नेक्स्ट ये सैंपल दिया है मैंने, और ये विजुअल सपोर्ट से नादिया इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, आप शेयर कर सकते हैं मेरे क्योंकि वो थोड़ा सा आपको अंदाजा है स्लाइड्स का। नेक्स्ट क्योंकि मैंने कहीं और भी लेक्चर सेम दिन, अच्छा ये आप देख लें नादिया कि ये जो है ना इसमें विजुअल परफॉर्मेंस आपका डोमेन है, देखा आपने बी वाला एबल्स आर का। गोल्स ये था मैचिंग और मेमोरी, टाइप ऑफ गोल था शॉर्ट टर्म, ठीक है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड फ्लैश कार्ड्स, ऑब्जेक्ट्स, मेस्ट्री क्राइटेरिया हमने बताए, जनरलाइजेशन करेंगे, मेंटेनेंस में डाल देंगे, मेस्ट्री के बाद डाटा रिकॉर्ड रखेंगे, और ऑब्जेक्टिव ये द चाइल्ड शुड बी एबल टू मैच द पिक्चर्स विद द कॉरेज, हाउ टू इंप्लीमेंट टीचिंग प्रोसीजर्स एक्सप्लेन, इस तरीके से हम बनाते हैं किसी भी गोल को। नेक्स्ट ये मैंने, आप क्लियर तो नजर नहीं आ रही, बट दिस इज हाउ, इसमें सारा प्रोसीजर जो मैंने बताया इसी तरह लिखा होता है। नेक्स्ट ये नेक्स्ट करती जाए नादिया, और ये इसमें डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है कि आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे मॉनिटर करना है, और वो आसान से लेकर आप नेक्स्ट कर दें। ठीक है, ये एबल्स आर की पिक्चर्स हैं, और ये कुछ स्पीच के गोल्स हैं, फिर सेक्शन एग्जांपल्स की मेस्टेड क्राइटेरियाज हैं वो बताए हैं कि आपने कैसे करने हैं वर्कशीट्स पे। हम इस पे नादिया नेक्स्ट टाइम करेंगे जिसमें हम प्रॉपर एबल्स आर के उसमें करेंगे। तो ये आपका एक थोड़ा सा बैक करें नादिया, थोड़ा सा बैक करें, नहीं नेक्स्ट करें, ये देखें इससे थोड़ा बैक करें, इससे पिछली 4 स्लाइड्स देखिए। अगर आप किसी का एकेडमिक करिकुलम और पीछे ले जाए, यहाँ पे देखिए लिखा है इजी स्टोरी राइटिंग, नेक्स्ट करें। फिर उसके बाद आता है नादिया नेक्स्ट करनी है या लास्ट? इंटरमीडिएट स्टोरी राइटिंग, फिर उसके बाद आता है इंटरमीडिएट स्टोरी राइटिंग का टेम्पलेट भी ऐसे बताया। नेक्स्ट ये स्कूल करिकुलम की कुछ एक एग्जांपल, फिर डिफिकल्ट स्टोरी राइटिंग, आप इसमें विजुअल्स भी, फिर एडवांस स्टोरी राइटिंग। तो दैट्स हाउ यू कैन डिस्क्रीटली डिवाइड योर एकेडमिक गोल्स एज वेल। नेक्स्ट नादिया, और ये इस तरह रीडिंग के भी गोल्स नेक्स्ट आप करती जाए, जहां होगा मैं आपको रोक लूंगी। ठीक है, तो नादिया ये इस तरह से नेक्स्ट ले दें, इस तरह से WH क्वेश्चंस को बना सकते हैं, आगे ले जाए, सारे आगे ले जाए। तो और ये देखें, ये आपके मैंने सैंपल दिए है, लेकिन ये अदारे की अमानत है, ये रफ दिया है कि बिगनिंग करिकुलम गाइड में ये डोमेन्स और ये गोल्स इस तरह से बनाती है। नेक्स्ट
ये इंटरमीडिएट करिकुलम गाइड है और नेक्स्ट और एक एडवांस करिकुलम गाइड है. दिस यू कैन नॉट शेयर विद ये कदारे की मानत है. थैंक यू सो मच जी. भाग भाग के आपका कराया, पता नहीं आप फायदा भाग अच्छा डॉक्टर अनीका, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि ये हमारा लाइव जा रहा है फेसबुक पे, तो कोई वो बात तो मतलब अब लाइव है तो कोई बात, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ठीक है ना. वैसे हम कहीं आपकी प्रेजेंटेशन शेयर नहीं करेंगे. कोई बात नहीं. बस वो स्लाइड्स वही का है कि वो एक्चुअली इदारे की मानत होती है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. जी जी. अच्छा ये बताएं डॉक्टर अजरा कि इतनी स्पीड पे बोलने की वजह से कोई प्रॉब्लम? हाँ, मैं यही आपसे थोड़ा सा थैंक्स अ लॉट, ये आपने इतनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन बिकॉज इट इज टू लॉन्ग, तो हमारा क्योंकि 1 घंटे का होता है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हम आपसे फिर पूछ लेंगे इंशाल्लाह ताला, और ये हम कंटिन्यू करेंगे. इसमें मैं एक मेरा क्वेश्चन भी है और सजेशन भी है. वो ये कि हमने अभी आईईपी पे बात की है, और एंटैरियो में जो है एक और प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट लर्निंग. एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग प्रोग्राम जो होता है, इट इज फॉर एवरी चाइल्ड, है ना. तो क्योंकि देखें, वैसे भी जो नॉन ऑटिस्टिक या जिनको हम कहते हैं कि नॉर्मल है, नॉर्मल तो खैर हर शख्स ही है, तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. बाज दफा स्कूल से ड्रॉप आउट भी होता है, बाज दफा डिफरेंट कल्चर्स की वजह से पीयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से उनकी वो आउटपुट नहीं हो पाती. तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जो बहुत ही जो है इंटेलिजेंट, बहुत हाई आईक्यू के, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो स्कूल नहीं जाएंगे. तो हमारे पाकिस्तान में तो बेचारों को फिर कोई है ही नहीं, है ना. तो वहां पे जो है उनके लिए इंडिपेंडेंट लर्निंग, क्योंकि मैंने खुद आई पर्सनली विजिटेड, कि उनको गाइड करने वाले लोग होते हैं. और ये हाई स्कूल के लिए तो है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए है कि नहीं, ये जरा देखना पड़ेगा. हाई स्कूल और जिसको हम कहते हैं कि आफ्टर 5, ग्रेड 5 भी है. अच्छा, एक और जो बहुत अच्छा सजेशन जो मेरे जहन में आया था, मे भी आप लोग कर रहे हो क्योंकि आप लोग तो इस फील्ड में हैं, कि जैसे डॉक्टर अनीका ने ये बात बहुत अच्छी कही कि मैं हर चीज की मास्टर नहीं हो सकती. अरे मैं तो मेनली पीडियाट्रिशियन, आम सी पीडियाट्रिशियन हूँ, डॉक्टर अनीका की तरह की भी नहीं हूँ. नहीं तो जब एक आम सी जो पीडियाट्रिशियन हो हर चीज नहीं कर सकती, तो बस हमें जहन खुला रखना है और सोचना है कि क्या हम अपने बेस्ट तरीके से बच्चों के लिए कर सकते हैं. तो एक सजेशन, क्योंकि जब आपने आईपी कहा तो मेरा दिमाग तेजी से इस पे चल रहा था कि होम स्कूलिंग. अच्छा, होम स्कूलिंग अब जो लेटेस्ट मॉडर्न तरीका है सिखाने का है. जब हमने पहली दफा सुना था, आई थिंक अबाउट शायद 10 years बैक मैंने सुना था, तो आई वॉज द वन, यानी कि मैं इतना उसके ऊपर मैं बोली कि ये कौन सा तरीका निकाला भाई, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल क्यों नहीं जाएगा. और थोड़े ही सालों में मैंने देख लिया कि कितना जबरदस्त वो सिस्टम है. क्योंकि जैसे डॉक्टर अनीता ने कहा कि भाई कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है लेकिन आर्ट्स में अच्छा नहीं है, या साइंस में अच्छा नहीं है, तो सो व्हाट. तो उसमें जो होम स्कूलिंग में मदर्स ही करती हैं, है ना. और फर्ज करें कि एक मदर अगर मैं हूँ, एक मदर अगर नादिया है, एक मदर अगर डॉक्टर अनीका है, तो हमारी सबकी स्किल्स अलग होंगी. बिल्कुल. तो हम जो है, जो मैं पढ़ा सकती हूँ वो मैं पढ़ाऊंगी, जो नादिया पढ़ा सकती है वो पढ़ाएंगी. और होम स्कूलिंग का ये मतलब नहीं कि वो जमा एक जगह जमा ही नहीं होते हैं. वो वीकली बेसिस पे या ट्वाइस अ वीक या मंथली बेसिस, जैसे अर्थ डे मना रहे हैं या कोई, वो जमा होते हैं और उनकी भी एक जगह होती है ना. तो वो उनका आपस में, और मैंने ये फर्क देखा है कि जो हमारे यहाँ जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, इतना ज्यादा उनका हेक्टिक स्केड्यूल होता है कि वो अभी तो स्कूल गए, फिर इतने बजे आएंगे, फिर जरा सा खाना खाएंगे, फिर उनके कारी साहब आ जाएंगे, मदरसे जाएंगे, फिर उनका होमवर्क होगा या ट्यूशन जाएंगे, तो उनको टाइम ही नहीं होता. और मैंने होम स्कूलिंग के बच्चों को देखा कि वो हर चीज उनको आती है आराम से, रिलैक्स, उनको खुद ही करना है ना. और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो और ज्यादा रिलैक्स, यानी कि उनकी जो है अपनी जो स्किल्स हैं ना, उसको जो है उनकी मदर समझती हैं कि भाई ये इसकी स्किल्स हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेसेस हैं. तो इस तरह का होम स्कूलिंग सिस्टम हम बनाएं अपने स्पेशल बच्चों के लिए हैं.
है ना, क्योंकि हर बच्चे का, जैसे बताया ना कि किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ है ना, कि इवन ऑटिस्टिक में हमें देखा है कि भाई हमें किस पे फोकस करना है ना, और साथ में अगर कुछ और चीजें भी हैं, डिसलेक्सिया है या कुछ भी है, या स्पीच का कौन सा प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से हम उसका शुरू से ही इंडिविजुअल प्लान जो है करें। तो इस पे भी मेरा ख्याल है करने की जरूरत है, क्योंकि और पाकिस्तान में भी होम स्कूलिंग बहुत जबरदस्त है। हम पहले समझते थे कि पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ कनाडा में, यहाँ भी बहुत जबरदस्त है। मैं खुद पर्सनली गई जहाँ पे वो होम स्कूलिंग की सारी मदर्स और बच्चे थे, इतना रिलैक्स था कि सब ये वन डिश लेकर आए थे, लाइब्रेरी छोटी सी बनाई हुई थी, और वहीं पे उन्होंने जो है क्लास ली, वहीं बैठ के खाया पिया और मजे से रिलैक्स। ये भी नहीं लग रहा है कि स्कूल में बैठे हैं, जैसे एक नहीं कोई खौफ होता है कि स्कूल जाना और आना। तो बहुत ही, मैं तो समझती हूँ कि वो बेस्ट तरीका है। तो आप लोग इस पे काम करें, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह को जानते हैं, हम तो सिर्फ और आई थिंक मशवरे देने वालों में हैं। जी डॉक्टर रिंका, अगर शेडो टीचर्स को भी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि स्कूल्स अक्सर पेरेंट्स को ये इशू आता है कि व्हेन दे हैव नीड शेडो टीचर्स, तो शेडो टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड, और अक्सर तो मतलब Yes. ये प्रॉब्लम होती है कि स्कूल्स एकोमोडेट ही नहीं करते विद शेडो टीचर्स, जब हम मेन स्ट्रीम स्कूल्स की बात या करें। शेडो टीचर मैं सब कुछ आपको कर एक लेती है, वो मैं बच्चा कुछ आपको करते ही नहीं है, मैं मतलब वो आपको शेडो नहीं, वो उसका इस रिप्लेसमेंट वजह से बन बहुत जाती है, तो सारे वो बच्चे भी की कर मैं लेती है। एक बहुत खुशी की बात ये बताने लगी हूँ आप सबके लिए, और मेरे लिए भी एक बहुत बड़े ये ऑनर है बताना कि हमने स्कूल स्किल्स रिहर्सल प्रोग्राम की तरफ से एक पायलट प्रोजेक्ट अपने इदारे में शुरू किया है। वो पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ ये देखने के लिए है कि जब इनको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाते हैं तो कौन सी चीजें हैं। हमने कमरे से शुरू किए और हमने तकरीबन 99% फ्री किए, यानी हम खुद पे कर रहे हैं लोगों को आने का हमने लोगों को खुद पे कर रहे हैं आने का, सारी कॉस्ट हम खुद उठा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया गया कि ये जो शेडो टीचर वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो बच्चों के लिए फाइनेंशियली मेंटली हर तरीके से स्कूल और ये कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए ये हमने 3 प्रोजेक्ट्स है इसमें। एक तो हम वो सब कुछ जो फेस कर रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम उन प्रॉब्लम्स को हम दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एवरी टाइम इट्स लाइक आज 4th सेशन है, सैटरडे को होता है। और नंबर 2 पे हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा प्रोग्राम जनरेट करने की कोशिश करेंगे जो पूरे पाकिस्तान में चले जाना चाहिए, जहां पे वो ना ही भी इन पर्सन आके अटेंड कर सकते। विद द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स वी विल शेयर द वीडियोस, वी विल शेयर एवरीथिंग कि ये हुआ, ये बच्चा ग्रुप में नहीं बैठ रहा था, हमने कैसे मैनिपुलेट किया इसकी बेस्ट। और फिर एक ग्रुप में जैसे डॉक्टर अजरा है, नादिया है, ढेर सारे लोग हैं हमारे साथ, वो इनकी बोर्ड की गवर्नर्स की मीटिंग भी बैठ सकती है कि हम इन प्रॉब्लम्स में क्या क्या चीजें हैं जो हम मजीद हेल्प आउट कर सकते हैं। ये वन मैन शो नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज जनरेट हो गई तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के प्लेटफॉर्म से इसका आगाज करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये शेडो टीचर के जो स्पेशल हमने एक छोटा सा दिसंबर में हम 3 ट्रेनिंग्स करने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कुछ ऐसा सिलसिला हो कि डॉक्टर अजरा की टीम उसमें किसी तरह शामिल हो जाए। वो ये कि एक तो हम क्रैश ट्रेनिंग कोर्स पेरेंट्स का कराने लगे, है तो हमारे दायरे के पेरेंट्स का, लेकिन हमने उसको ओपन करने लगे लाहौर के लिए। तो ये लाइक ये जो आरबीटीज और ये वो उससे बहुत डिफरेंट प्रोग्राम है, दैट इज वेरी क्लिनिकल वेरी प्रैक्टिकल, और उसमें हम कोशिश करेंगे ढेरों ढेर आप लोगों को वीडियोस दिखाएं। लेकिन वो वाली बात ये है कि अगर किसी की वीडियो पहुंच जाती है घरों में यहाँ से रिकॉर्ड करके स्क्रीनशॉट से, तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम इसका कोई हल निकाल लें। सेकेंडली ये कि हेल्प ऑटिज्म नहीं, वो जो पाकिस्तान, वीडियोस जो है ना डॉक्टर शाजिया जो करती है ना, तो उसमें वो फेस को शेडो कर देती जी हैं। जी वो हम कुछ कर लेंगे, वीडियोस अगर दिखाई हम कर जाती है ना, लेंगे, फेस हम शेडो हो कर जाता लेंगे। है। बहरहाल हम ना आपको शेडो टीचर की भी एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग, ठीक है, ताकि वो स्कूल का पूरा प्रोग्राम है, नॉट शेडो टीचर, सबको आना चाहिए। अच्छा, तीसरी इसमें जो चीज आप ये कह कि रही है ना कि आप जैसे कि लेने के बजाय फीस उनको पे करते हैं, तो मेरा प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक प्रोग्राम जो मैंने मदर्स के लिए किया था, उसमें शहजाद रॉय का जो कॉन्सेप्ट है कि अर्न टू लर्न, मैंने यस वही लिया था। तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप आओ तो हम तुम्हें इतनी यस क्लासेस यस तुमने यस अटेंड की, तो हम इतना, लेकिन दैट इज फॉर लाइक पीडियाट्रिक्स, यानी कि जैसे निमोनिया है और डायरिया है और ये सारी चीजें, तो उसमें एक ऑटिज्म का एक लेक्चर भी कि उनको सिखाने के लिए आओ तो सही, है ना। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल उसमें और फिर जब एक सीखता है ना, एक मदर सीखती है, तो हम उसके ऊपर पे कहते हैं अगर तुमने 10 को सिखाया तो तुम 10 के पैसे मिलेंगे।
तो इस तरह से फिर हम वो कर रहे थे। तो डॉक्टर would जी अल्लाह कुछ ताला ऐड करना चाह रही हैं डॉक्टर जी जी आई जी वुड डॉक्टर लाइक टू रिक्वेस्ट मैडम अनिका से, अगर वो परमिशन दे, तो कुछ क्वेश्चंस है हमारे थेरेपिस्ट के, कुछ क्वेश्चंस है पेरेंट्स के, तो अगर हम उनको अलो करें और वो अपने क्वेश्चंस करें तो ये थोड़ा सा आप पे हेल्प डिपेंड करते हैं, आपके पास टाइम है तो ठीक है, वरना नहीं है तो मुझे कोई मसला नहीं। नो इशू। अच्छा, मैं थोड़ा सा सॉरी कर लूं कि मुझे आई हैव टू लीव, तो मैंने नादिया को होस्ट बना दिया है। आई थिंक शी विल और डॉक्टर कंटिन्यू, रज़ा आपका बहुत और मैं शुक्रिया। बाद में और रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगी। थैंक यू। आई लव टू हियर, बट लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है कि आई हैव टू कोई लीव। बात नहीं डॉक्टर रज़ा, आपका थैंक बहुत यू। शुक्रिया, और हेल्प हमेशा आपके साथ है, हमेशा। वी विल डेफिनेटली ओके, कोलैबोरेट। थैंक यू अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज। यस मिस नूर, आप अपना क्वेश्चंस आगे करें। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम आज वालेकुम। का जो हमारा सेशन है बहुत हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है इससे रिलेटेड, लेकिन क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था तो कुछ चीजें एक्सप्लेन हो भी नहीं सकी। हमारे कुछ क्वेश्चन है। मैं एज अ थेरेपिस्ट फ्रैंकलिन सिस्टम में काम करती हूँ। क्वेश्चन ये है कि यूजुअली जिस तरह आपने प्लान की बात की ना कि हम इंडिविजुअलाइज प्लान बना लेते हैं, समटाइम्स इस तरह होता है कि बच्चे विद इन थेरेपी रूम जो है वो चीजें, वो ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर लेते हैं, लेकिन उनकी जनरलाइजेशन में थोड़ा जो है फिर इशू आता है। वो ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर लेट सपोज वो घर में नहीं होते, अब बच्चे ने जो है तो वो ऑब्जेक्टिव इधर अचीव कर लिए, थेरेपी में सेशंस में अचीव कर लिए, लेकिन हम उसको किस तरह जो है उन गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को जनरलाइज कर सकते हैं? अच्छा, जी मैं अब आपको एक बात बताती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा प्रैक्टिकली, कि एक्चुअली हम सब लोग जैसे ही बच्चे को डायग्नोसिस होता है ना, तो बिहेवियर पे काम करते हैं, फिर हम एबीए की तरफ चले जाते हैं। एबीए कम्स विद द स्ट्रक्चर एंड एबीए कम्स विद लॉट अदर थिंग्स। एक रोबोटिक सी लर्निंग है जो बस हमने करनी ही करनी है। हम समझते हैं सिर्फ एबीए में इसका इलाज है, हालांकि हम भूल जाते हैं कि ये बिहेवियर्स एक्चुअली वे ऑफ कम्युनिकेशन थे। और हम फ्यूचर में देखते हैं कि 50% ऑफ द बिहेवियर्स तो हमारी अपनी वजह से हो रहे होते हैं। बच्चा या तो हमारे एस्केप कर रहा है, या तो हमें लाइक उसको टेंशन सीकिंग किसी और की है, वो हमें नहीं चाह रहा, या उसको कोई टेंजिबल्स है, और हम एक कंडीशनिंग थेरेपी में माइस की तरह उसको बस वो रीइंफोर्सर ब्राइबरी के साथ चल रहे होते हैं। एक्चुअली अगर हम अपने माइंडसेट को चेंज करें और 3 चीजों पे बिलीव करके चलें कि हमने कम्युनिकेशन पर सबसे पहले काम करना है, नंबर 2 हमने बच्चे को अंडरस्टैंड करना है, और हमें कॉम्पिटेंट उनको भी फील करना है, खुद भी कॉम्पिटेंट रहना है और काम डाउन रहना है, तो फिर आप अपने माइंडसेट के साथ चेंज होकर 3-4 डिफरेंट चीजें करेंगे। हम रूटीन में कर रहे हैं वो ये कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है। वी डू समथिंग स्ट्रक्चर, नॉट एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड। आपको पता है जो टीचर, जो बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग में बच्चे के साथ काम कर लेते हैं ना, या ये कह लें कि बच्चे को ब्लॉक करके बिठाना बहुत आसान है और उसके पीछे भागना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम बच्चे की लीड लेते हुए या बच्चे के साथ इन्वॉल्व होते हुए, कनेक्ट होते हुए, किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट में उसके साथ चलते, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हु इज देयर, हु इज वाचिंग, तो आप हैरान होंगे कि उन बच्चों को अलहदा बैठ के काम करना ज्यादा आसान हो जाता है, हलवा हो जाता है, और वो बच्चे हर एनवायरनमेंट में बैठने के और काम करने के काबिल, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप समझ रहे हैं? और कभी कभी हमें कुछ सेंसरी इश्यूज की वजह से कुछ बच्चों को वाकईतन थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा है कि वो बच्चे भी पसंद करते हैं कि हमें, वो सेफ फील करते हैं अगर वो नेचर के ज्यादा करीब हो, वो लोगों के ज्यादा करीब हो। यही तो प्रॉब्लम है उन्हें, कम्युनिकेशन और सोशल इंटीग्रेशन। तो ये जो आपकी बात है ना कि घर यहाँ नहीं करते घर में करते, आप स्ट्रक्चर कर लेंगे, घर में अनस्ट्रक्चर है, तो उसका कुछ थोड़ा सा तरीकेकार है। अब जैसे व्हाट कैन आई डू, हमारे जो थेरेपिस्ट है, जो मैं जिस तरीके से ट्रेन करती हूँ, उनको फर्क ही नहीं पड़ता पेरेंट्स बैठे हो, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन आ जा रहा है, वो इस चीज से घबराते ही नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से की, वो 1-to-1 भी लेके बैठ जाते हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में भी ट्रेन करते हैं। ये बच्चे जब घर जाते हैं, अब जो आता है जनरलाइजेशन में कैसा होगा, वहां पे आता है पेरेंट ट्रेनिंग। अगर आपने माँ बाप को गाइड नहीं ना किया, कि वो उस बच्चे को नहीं पता व्हाट नेक्स्ट, और घर में भी माँ बाप को नहीं पता व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू डू दैट, हेल्प देम गो एंड इम्प्लीमेंट सम थिंग्स, लाइक उनको आप हेल्प आउट करें विजुअल स्केड्यूल्स के लिए, उनको हेल्प आउट करें चॉइस बोर्ड्स के लिए,
उनको हेल्प आउट करें फर्स्ट और नेक्स्ट की विजुअल्स के लिए, उनको हेल्प आउट करें, कोई आसान सी कोई चीज बना दें और उसके बाद सोशल स्टोरीज बना दें आप उनको, और नेचर एनवायरनमेंट उनको बताएं। इट्स ओके, आप उनको, बच्चा आप किचन में जा रही है, अपने बच्चे को किचन में साथ ले जाए, आप अपने कपड़े धोने जा रही है, अपने बच्चे को वहां साथ ले जाए। अगर आप आप कॉम्बिंग कर रही है मिरर के आगे, तो भी अपने बच्चे के साथ बातें करें, खाना पका रही है तो भी अपने बच्चे के साथ बातें करें। Keep talking to your child in every atmosphere and you will see the difference. क्योंकि इनको अंडरस्टैंडिंग का तो इशू होता नहीं है, इनको एक्चुअली मोटर प्लानिंग का इशू है। दूसरे, इनकी जिंदगी में हेल्दी मोटर पर्पसफुल एक्टिविटीज बढ़ाएं, इनको थकाएं, इनको थोड़ा पसीना आना चाहिए, फिर इनकी जिंदगी में अनहेल्दी अनपर्पसफुल मोमेंट्स कम होना शुरू हो जाती है। माँ बाप को गाइड करें और थोड़ा सा माइंडसेट को एक नेचुरल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग पर लेकर आए, और उसके बाद ये टीम वर्क है, देन इट विल शो यू वंडर्स। और बिहेवियर्स को आप Thank साथ you. साथ डील करें। मिस सुनैना का क्वेश्चन है। यस जी मैम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का ये जो था, ये बहुत इंफॉर्मेटिव एक मीटिंग थी, जिसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं बच्चों के लिए। जब हम प्लानर्स बनाते हैं तो बहुत सारा था जो कि हम अपने प्लानर्स में न्यू थिंग्स अब करेंगे। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्टबन होते हैं ना, तो उनकी ये स्टबननेस को किस तरह से हम लोग कॉम्प्लायंस की तरफ लेकर आए? ठीक है, अगर जब आप कंप्लायंस पे काम करते हैं ना बेटा, तो याद रखना कि कंप्लायंस पे सबसे पहला जो रूल है ना, वो कम्युनिकेशन और कनेक्शन है। अगर आप जो चाहती हैं वो आपने करा लिया तो ये सक्सेस है, तो फिर ये सक्सेस नहीं है। आप चाहती हैं, आपने गोल डिसाइड कर लिया है कि आपने यहाँ बैठ के ये बास्केट बनाई है, ये करानी है, और आपने माँ को एक गोल देने, अगर आपके ख्याल में यही काम है, तो फिर ये कभी कंप्लाइंट नहीं होगा। अगर आप सही मानों में उसके साथ कम्युनिकेशन कनेक्शन पे जाएंगी तो आप उससे बैटल नहीं करेंगी। अगर आप चाहती हैं कि उसकी स्टबननेस खत्म हो, तो आप बेसिकली हर वो प्रोग्राम, हर वो गोल, हर वो चीज पसंद करेंगी जिससे आप उसको अंडरस्टैंड करें, आपका और उसका इमोशनल ट्रस्ट बिल्ड ऑन हो, आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, वो आपके साथ काम डाउन रहे और आप उसका रीइंफोर्सर बन जाए। और वो सब ऐसे सिर्फ पेयरिंग से नहीं होता, एक्चुअली पूरे के पूरे कनेक्शन से होता है, और आप उसको कॉम्पिटेंट फील कर रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, जैसे मेरा बड़ा दिल करता है जैसे कोई इस तरह का सवाल है तो हम आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखाएं, और मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं ये इस्लामाबाद से, और वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ डिफरेंट फ्रॉम फॉरेनर्स, उनकी उन चीजों से ज्यादा जो हमारा नेचुरल ओरिजिनल है, कि हम दिखाएं कि जो स्टबन बच्चे थे किस तरह स्टेप वाइज हम उसको लेकर आगे चले। तो उसमें क्या है कि आप बच्चे की लीड लें, बच्चे के साथ प्ले करें, बच्चे के साथ एज अप्रोप्रिएट बात करें, बच्चे के लिए आप अपनी सेल्फ को सेक्रीफाइस करें, और आप उसके लिए दिल से उसको खुश रखें। और जब आप देखेंगे कि जब आपका बच्चा आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड ऑन कर रहा है ना, और आपके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, चाहे बोल नहीं रहा, और आपने उसको समझ के रिस्पॉन्स दिया है और उसकी लीड लेकर शुरू में उसके साथ चली है, तो वो कल को वो भी करेगा जो आप चाहती है। और इस तरह से इन बच्चों की स्टबननेस और बिहेवियर दिनों में मैनेज होती है। और घर में भी यही गाइड करें माँ बाप को कि टिपिकल जो उनका एक लाउड वॉइस में इनसे बात ना करें, इनके साथ तो इतनी विस्परिंग बात करनी चाहिए कि सिर्फ इनके और आपके बीच में आवाज रहे। और ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको इनकी स्टबननेस को, इनकी कंप्लाइंट होने में हेल्प करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Yes, Shoaib mothers want to ask some questions, please. Yes, ma'am. Assalamu alaikum, ma'am. जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि आप इन किड्स की जो हायर एजुकेशन के फ्यूचर में जो ये इनको आप कैसे देखती है इस चीज को मैम? हायर एजुकेशन क्या? सॉरी,
फ्यूचर में अगर ये बच्चे is these kids capable to get a higher education, if is it possible, and what are the early intervention in this case we can do for these kids? पहली बात तो ये कि अभी जैसे जो प्रजरा ने बात की पहले भी कि अगर माँ बाप ने ये वाला माइंडसेट बना लिया ना कि सिर्फ एक ही चीज पे सोचे कि ये क्या बड़े होके पढ़ लिख जाएंगे बन जाएंगे कुछ और इसी के गिर्द घूमते रहे, तो वो फिर बात नहीं बनेगी। अगर तो हम वाकई से चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा करें और तो उनकी स्ट्रेंथ्स को भी देखें। और सबसे बड़ी बात, आजकल की दुनिया में ना बड़ी से बड़ी डिग्रियां लेके लोग बेरोजगार बैठे हुए, काम सिर्फ वही कर रहा है जिसके पास स्किल है। एक टेक्नीशियन एक डॉक्टर से ज्यादा कमा रहा है। तो इसलिए हमारा भी बेसिक टारगेट ये होना चाहिए कि एजुकेट भी करें और स्किल्स को भी प्रमोट करें। नंबर 2 कि ये जो है ना ऑटिज्म, इसमें अगर एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, हर बच्चा दूसरे से फर्क है, तो आप यू कैन नॉट लाइक कंपेयर विद वन टू द अदर चाइल्ड। हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ फर्क हो, उसका लेवल फर्क हो, और इसलिए उसका फ्यूचर भी आपसे इस बच्चे से थोड़ा फर्क था। तीसरी बात ये कि ये जो हाई फंक्शनिंग और लो फंक्शनिंग के अब आपने यूज नहीं टर्म करनी, आपने देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या थी और उसकी कंप्लायंस को साथ, नीड्स को साथ लेके चलना है। इसके अलावा देखिए, अगर आपको कोई कहे कि रिकवरी तो बहुत ज्यादा है, साथ साथ होती रहती है, क्योर पे मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मैं हमेशा मिसाल देती हूँ अपनी कि देखे मुझे ऐनक लगी हुई है, बट यू कैन नॉट कॉल मी ब्लाइंड। और ऐनक लगना मेरी जात का एक छोटा सा पार्ट है, बट यू कैन नॉट जज मी फ्रॉम माई ग्लासेस। मेरा दिल कैसा है, मेरा दिमाग कैसा है, ऐनक के यानी मेरी नजर कमजोर है, बट यू कैन नॉट से मी ब्लाइंड। मैं ऐनक यूज कर रही हूँ, मैं कल को लेजर करा लूंगी या मैं मोतिये का ऑपरेशन करा लूंगी, लेकिन मेरी नजर थोड़ी बहुत कमजोर ही है ना। तो इसी तरह ऑटिज्म उसकी पर्सनैलिटी का एक छोटा सा हिस्सा है जो उसके साथ लगा हुआ है। आप सिर्फ उस पर फोकस ना करें, ठीक है, आप और चीजों पे भी फोकस करें। ऑटिज्म को उतना ही देखें जितना इसको देखना चाहिए। वो भी एक इंसान है, उसकी भी एक सेल्फ एस्टीम है, वो आपकी सारी बातें सुनता है, वो आपकी सारी बातें समझता है, और आप ही सब कुछ है उसके लिए। अगर आपने अपने आप को छोटे से जहन का बना लिया और छोटे से माइंडसेट के साथ चली, तो उसको कौन आगे लेकर जाएगा, उसको कौन अंडरस्टैंड करेगा। तो मैं तो आपसे कहूंगी कि इस वक्त सारे माँ बाप को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। प्लीज इन बच्चों को, स्पेशली ऑटिज्म के बच्चों को, मोटर प्लानिंग इश्यूज है, उनके कॉग्निटिव का कंट्रोल मोटर पे वैसा नहीं है, उनको अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं है, उनको स्पीच का इशू है, लैंग्वेज के इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन वो सुनते हैं, समझते हैं। इसलिए अगर वो जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं उसको मार्क्स दें, उसको साथ लेके चले, ताकि उनकी इनर वॉइस तक हम पहुंच सके, बजाय इसके कि जो हमने डिसाइड कर लिया है बस वही कराना है। अगर वही सक्सेस है तो ये कहाँ लिखा है कि रट्टा लगा कर डॉक्टर बनने वाला वो प्रैक्टिकली वो एक अच्छा डॉक्टर भी बनेगा। सारे लोग किंग एडवर्ड से पास आउट होते हैं, लेकिन 10 के 10 किंग एडवर्ड के लोग अच्छे डॉक्टर नहीं होते जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते। इसलिए आप वही देखें जो आपको एक एज ह्यूमन, आप अपने आप को एक थोड़ा सा ऊपर लेकर जाए दर्जा अपना, और अपने आप को थोड़ा सा अच्छा लाइक खुद भी आप अच्छा फील करेंगे जब आपको एक मोल्ड करने की आपकी सलाहियत होगी। तो अपने बच्चे को आपने साथ लेके चलना है। तो आप जब नए रंग से दुनिया को देखेंगे, दुनिया भी फिर आपको वैसे ही देखेगी। और आपने अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दे दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो 5वीं जमात में, वो 7वीं में, वो चाहे होम स्कूलिंग कर रहा है, लेकिन अगर वो आप उसको समझ गई हैं और वो बेहतर होना शुरू हो गया, यही आपकी सक्सेस है कि आपने उसकी इनर वॉइस सुन ली है। बिल्कुल। अच्छा, मिस उस्मा गिलानी ने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है, मिस उस्मा से पूछ लेते। जी मिस उस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस नादिया, मैं इस वक्त अपनी क्लासरूम में टीचर्स के साथ मौजूद हूँ, और वैसे तो हमारी असेसमेंट हो चुकी है, लेकिन मेरी ये टीचर्स जो हैं ये कह रही थी कि बच्चों के साथ कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू होता है, स्पेशली अफगान के साथ। मतलब वो बच्चा थोड़ा सा इलूपिंग की तरफ चला गया है, थोड़ा सा वो भागता है। तो क्या कोई छोटी सी ऐसी सी 2-4 स्ट्रेटेजीज हो सकती है कि हम बच्चों की इलूपिंग को थोड़ा सा, उनके साथ ज्यादा कनेक्ट रहिए और इलूपिंग को थोड़ा कंट्रोल कर सकें? जी डॉक्टर अनीका, ये मिस उस्मा इज फ्रॉम कोयटा, और ये इन्होंने कोयटा में पहला सेटअप स्टार्ट किया है स्पेशल एजुकेशन का। मैं वीडियो स्टार्ट करके थोड़ा सा दिखा दूं, इफ यू डोंट माइंड।
जी जी एक बिल्कुल, आपने आप वीडियो प्राइवेट स्टार खोल के private बताएं तो blog- लोगों को मोटिवेशन मिले। अच्छा जी जी, मैं ये वीडियो जो है स्टार्ट कर रही हूँ। जी जी तो शी इज आल्सो डूइंग अ ग्रेट वर्क, और वो भी चाह रही हैं कि उनके स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए, जैसे माशाल्लाह आप कर रही हैं जो काम कर रही हैं। तो प्लस हमारे पास स्पेशली केपीके और बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा नीड है इस चीज की। इंशाल्लाह विल हेल्प। ये वीडियो क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? कोई बात नहीं नादिया, उसमें मैं आपको बता देती हूँ। चलें वो बता देती हैं हाँ, आप। ये वीडियो स्टार्ट हो गई, ये देख लें नादिया। जी This is जी me, और माशा- ये सेटअप है लाइट्स। चलें गुड। चलें डॉक्टर अनीका आपको बताती हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। जी डॉक्टर अनीका। ये चीज जरूर। हाँ, असल में देखिए, एक बच्चे की सिर्फ हाइपर एक्टिविटी, रनिंग, क्लास में ना बैठना, ये चीजें आपको वरी कर रही है ना कि उसको किस तरीके से हम क्लास में बैठाएं। जी जी एम आई राइट? जी जी तो अगर एक बच्चे को आप चाहती हैं कि वो क्लास में बैठे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उस एक चीज को आपने ले लिया कि एक गोल बनाना है आपने कि हाँ जी ये मेरा डोमेन है कि आई वांट हिम सिट नाइसली इन अ स्मॉल ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका गोल है। ठीक है, अब आ जाता है कि आप उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स भी मेन आपकी डोमेन थी कि बच्चे को, आपकी गोल ये था कि चाइल्ड शुड हैव सिटिंग टाइम, let's say 15 minutes or like 20 minutes, and the child should sit in a small group comfortably. और objective ये था, the child should be able to sit in a small group when ordered. ठीक है, तो लेकिन वो बच्चा नहीं बैठता, तो अब आपने क्या करना है कि आपने उसको इस ऑब्जेक्टिव को, अब आपने एक टास्क समझ के, टास्क ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके उसका टास्क एनालिसिस बना लेना है, पहली बात। दूसरी बात आपने देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो उसकी बिहेवियर में प्रेसिपिटेट कर रहे थे। 2, तीसरी बात आपने देखना है क्या आपके कोई एक मेथड काम नहीं कर रहा तो आप उस पर फिक्स नहीं करेंगे। यू कैन चेंज योर लाइक मेथडोलॉजी टू गेट इनटू इट। जैसे हमने अभी बात की, उसी को जेन पे लेके हम करेंगे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टास्क में हमने बनाया कैसे। हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमने लिखा कि भाई सबसे पहले तो हम स्मॉल ग्रुप में इसको बैकवर्ड चेनिंग से लाएंगे, यानी कि हम थोड़े टाइम से शुरू करेंगे। बच्चे अपनी एक्टिविटीज जब खत्म कर रहे होंगे और वो वाइंड अप स्टेज पे होंगे, तो एक तरीका तो ये कि हम लास्ट 5 मिनट्स में इसको लेकर आएंगे। ठीक है, और लास्ट 5 मिनट्स में हम इसकी कोई ऐसी जगह डिसाइड करेंगे उसी के बीच में जहां इसकी कोई फेवरेट हमने कोई चीज रखी है, या हमने उसको अगर वो नहीं भी ग्रुप के साथ बैठता लेकिन उस कमरे में आ जाता है और फ्यू सेकंड्स वहां बैठ जाते हैं, 1 मिनट से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आप बैकवर्ड चेनिंग से उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, आपने जब उसको, अगर आपने एबीए पे वर्क किया तो आप उसका कोई एक रीइंफोर्सर, आप लेट्स से आप उसको बताती हैं और कहती हैं कि फर्स्ट वी विल sit in a group and then I will give you this. फॉर एग्जाम्पल आपने उसको ट्रेन करना शुरू किया हुआ है और आप उसके बाद उसको गुड बिहेवियर पे उसको वो दे भी सकती है इन 1 मिनट टाइम। यस, गुड सिटिंग, नाइस, वो उसको स्ट्रेस भी नहीं है, यू उसको वहां बैठ नहीं कर, उसको आप बढ़ा सकती। इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं कि आप उसको आप उसको कनेक्ट करते हुए साथ चल सकती हैं। जैसे अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहती इन विजुअल्स को या रीइंफोर्समेंट्स को और आप ग्रुप में बिठाना चाहती हैं, तो उस ग्रुप में काम डाउन किट को यूज कर लें, या कोई पॉपकॉर्न यूज कर लें, या कोई ऐसी चीज बैठ जाए जहां वो बैठ जाए थोड़ी देर के लिए और हम उसको ये रिवॉर्ड दें कि यू हैव डन दिस। ठीक है, इसके अलावा ये कि जब हम दूसरी वाली चीज पे आते हैं ना कि बिहेवियर पे, तो आपने याद रखना है कि बिहेवियर को मैनेज करने के लिए बिहेवियर को देखना पड़ता है। तो उसमें आपने सबसे पहले 4 चीजों को सबसे पहले देखना है। कोई भी दुनिया में बिहेवियर आए ना ऑटिज्म के बच्चों को, तो मैं इसको 1 और 2 पे डिवाइड करती हूँ। 1 इज द 4 बेसिक थिंग्स टू बी वॉच्ड, दैट इज उसको मेडिकल इशू तो नहीं है, उसको भूख और ये फीडिंग वाली प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसको टॉयलेट का मसला तो नहीं है, उसको स्लीप इश्यूज तो नहीं है, उसकी बेसिक नीड्स है। इसलिए जब भी आप किसी बच्चे को घर से रिसीव करें, इसकी इंफॉर्मेशन के बगैर ना लें, बॉडी मैपिंग करें उसकी, क्या कोई इसको कोई पेन, ब्रूजेस ये तो नहीं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 टू मैनेज द बिहेवियर, वो दैट इज A, B and C। उसमें क्या है कि टारगेट बिहेवियर आपका रनिंग है। अब आप ये देखें क्या है, वो एस्केप कर रहा है, वो टेंशन सीकिंग के लिए कर रहा है,
वो टेंजिबल्स उसको चाहिए या उसकी ये सेंसरी नीड है। फर्ज करें कि आपको पता चल जाता है कि वो अवॉइड कर रहा है, तो आप अवॉइड में आप क्या कर सकती हैं? अगर अवॉइड कर रहा है तो आप अपने तरीकेकार को उसके साथ काम करने को बदल सकती हैं। आप उसको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स दे सकती हैं, आप उसको बैकवर्ड चेनिंग से इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। अच्छा, अगर वो अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहा है तो फिर आप उसको टेंशन तो नहीं देंगी ना भागने पे, बल्कि आप उसको थोड़ा सा टाइम आउट कर देंगी, या फिर आप उसको बताएंगी कि उसकी बातें और चीजों में उसको जब वो भागता है नोबडी लिसन्स टू हिम, और जब वो बैठता है तो उसको एवरीबडी अप्रिशिएट्स। तो एक आप उसको तीसरी चीज आ जाती है, अगर आप ABA को साइड पे रख दें और अगर आप अलहदा रूम में उसको हेल्प आउट करना चाहें, तो अगर वो भागता है तो उसको आप ज्वाइन कर लें। उसके वो चलना चाहता है तो उसी क्लासरूम में आप उसकी चलने वाले गोल्स को डाल दें, लेकिन अब उसमें एक पर्पस डाल दें। जैसे क्लास बैठी हुई है लेकिन आपने एक तरफ से उसको गाइड कर दिया, इफ ही वांट्स टू वॉक, क्या आप एक साइड से बॉल्स उठाएं और वो एक दूसरी बास्केट में चल के जाके डाल दें, और वो एक बंदा उसको गाइड करता रहे, वो चलता रहे, वो डालता रहे, है वो इसी रूम में। और फिर आप उसको प्ले भी कर सकती है, बच्चों सबको इन्वॉल्व कर सकती है उसके साथ भागने में। 10 मिनट की कोई एक्टिविटी प्लान कर लें जिसमें सारे ही उसको साथ भाग रहे हैं, ठीक है? तो और उस रूम में चाहे वो 5 मिनट की एक्टिविटी हो, और उसको आप प्लान आउट कर सकते हैं। तीसरी चीज आ जाती है कि अगर कोई उसको टेंजिबल्स चाहिए उसको देख ले। और चौथी चीज आती है सेंसरी नीड्स। अगर सेंसरी नीड्स में अगर भागना या उसको करना है तो उसके बहुत सारा पूरा प्रोग्राम है। आप उसको ब्रशिंग्स करें, आप उसको जॉइंट कंप्रेशंस दें, आप उसको सेंसरी वॉक होती है वो दें, काम डाउन किट यूज करें, और बहुत सारा पूरा प्रोग्राम है भागने का। आई कैन सेंड यू इनबॉक्स नादिया एंड शी कैन सेंड यू इन व्हाट्सएप, तो आप वो उसको आराम से डील कर सकते हैं। सो every behavior is like this, first 4 basic things and then 4 these things, और other than this अगर कम्युनिकेट आपको इसने कोई चीज कर दी है और आपने अंडरस्टैंड नहीं की तो फिर आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। अगर वो कम्युनिकेट कर देते थोड़ा सा, आपने जरूर हार्ड एंड फास्ट रहना है, आप उसको थोड़ा सा उसके साथ कोऑपरेट करें, उसको अपने साथ लेके चलें, उसकी लीड लें और उसके साथ कनेक्ट करें, रिलेशनशिप बिल्ड ऑन करें। आप टिपिकल टीचर ना बने, टिपिकल टीचिंग ही सारी मुसीबत है। तो ये आपको अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, माइंडसेट। ये सब कुछ ABA में नहीं है, आज मैं आपको क्लियर बता रही हूँ तो इसलिए एक बात, आप माइंडसेट चेंज करें, आप बच्चे के साथ एज अप्रोप्रिएट बात करें, प्ले के साथ चले, और पेयरिंग अप बहुत जरूरी है। पेयरिंग अप और फॉलोइंग द चाइल्ड्स लीड, उसकी लीड फॉलो करते हुए आप उसको कई बहुत लर्निंग करवा सकते हैं। हाँ जी, इनर वॉइस तक पहुंचे, आपके मसले हल हो जाए। आई होप कि थोड़ी सी हेल्प हुई है आपको। Thank you so much. Thank you so much for such an amazing and informative presentation. You have explained everything very concisely and very beautifully. So this was the end of our today's webinar. Again, I would say thank you to Ma'am Anika and Miss Nadia Riaz and Dr. Azra and all the participants for sparing their time. I hope to arrange such kind of webinars and sessions in the future and play our role for the betterment of children with autism. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।